So again, Jai Hind, good evening. Let us start. This is lecture number I think 14 for matrix and determinant. So आज का main, let me tell you the agenda. We have already covered everything, right? So the agenda for today is that we'll be practicing certain questions from R.D. Sharma, right? From both these lessons, matrix and determinants. Then we'll be moving to a book called NCERT Exemplar, and I will be giving you an idea about how to solve these questions from NCERT exemplars, okay, for both the chapters, matrix and determinants. And last half an hour, 30 minutes, these we will be doing for 1 hour 30 minutes. And last 30 minutes I have kept you to I will be teaching you the row echelon form. These are JE topics, extra topics from JE mains. So I'll be teaching you row echelon form, Gauss-Jordan method, okay, and what is the meaning of rank of a matrix, okay. And if I get some time, I will be also be telling you about the eigenvalues and everything. So this is for the later part. Okay, let me just allow somebody wants to get in. Okay, wait. No. Yes, so this is it. And after I finish, obviously I'll be just giving you an idea about and we'll be solving some questions from R.D. Sharma and NCERT exemplar. After that, I will be uploading R.D. Sharma and NCERT exemplar on your classroom file sections or material section. So whenever you give mock test and everything, keep the practice continued from whatever resources you have uploaded, whatever resources I have uploaded. So all of the DAQs will be available with you. Okay, so do not forget that once I move to the next chapter called vector algebra, you do not move everything to vector algebra. You just use this technique called 1 plus 1 plus 1 technique. Alright, in 1 hour keep studying the old topic. Just wait. In 1 hour, this 1 plus 1 plus technique, keep studying the old topic, which is this topic called matrix and determinant, for which we are discussing the last lecture today. And in 1 hour give some mock test and DAQs. What mock test and DAQs will be giving? Okay, solve all the DAQs again and again. Okay, solve all the FSTs, all the CPT chapter by previous year test, and this 120 question live mock that will be taking tomorrow, PYQs. So all of this process should continue, and in just 1 hour you need to invest in this new topic. Invest like 15 to 20 minutes to make notes and 40 minutes more to solve any DAQs if they are there. Okay, and you can adjust time accordingly in this slot. Okay, what I am telling you is the importance of revision. Okay, only if you revise ample amount of time, then only you can take that. Apart from this, about notes, I have already briefed you. Lalita, you send me your notes today, na? Yes, sir, I did. Okay, see, I have watched your notes. They are good, but see, there is one thing that I have already briefed you there also. Make sure that in every formula you understand what are the terms. Okay, in every formula you should be very clear about the meaning of terms and how they are used. For example, if I write adjoint of A is equal to determinant of A to the power n minus 1, you should be very clear about what is the meaning of ADJA, what is the meaning of this sign, what is A, okay, what is this dabba meaning, right? Determinant, what is n, okay, n is the order, okay, and n क्या क्या हो सकता है, right? N can be a natural number, okay, obviously Okay, sir. determinant square matrix का निकलता है, okay. And I will not tell you कि just make your notes in the same style that girl has made, Anya has made. Okay, you can make your notes in any style you love. Okay, but just keep it very short and crisp. If again it goes to a lot of pages, then it will be very hectic for you to revise. Okay, so I will suggest, if you ask me, there is a method that you should take A4 sheet pages and then use just 4 pages at maximum, and उसी में आप रख दो. एंड आपने जो नोट्स बनाया उसमें एवरीथिंग इज रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज and the formula is there, right? All of the formula that is there, okay, that is good. But if you can Indianize that, if you can add some Indian flavor to that or your own way of understanding, that will be very helpful. For example, what is your own way of understanding? For example, if I say, let us say A into B matrix multiplication, what is my way of understanding is the CR rule.
सी आर रूल इज माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, कि फर्स्ट का रो कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड का रो। एंड मल्टीप्लिकेशन में और क्या सिखाया था आपको, कि फर्स्ट के कॉलम से सेकेंड, सॉरी, फर्स्ट का रो को सेकेंड के कॉलम से तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। सी जस्ट सी हियर, क्या सिखाया था कि ये यहाँ पे आपका, लेट मी टेक यू टू दिस पॉइंट। ओके, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये आपका सेकंड मैट्रिक्स है। यहाँ ए बी सी है, यहाँ डी ई एफ है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये हम चेक करते हैं किस रूल से, ये हम चेक करते हैं सी आर रूल CR से। rule. कि फर्स्ट में जैसे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। 3 cross 3. तो अगर अब मैच करके देखेंगे हम, तो फर्स्ट का कॉलम यानी कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 3 है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो भी 3 है, यानी दोनों मैच कर गया, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये नया ऑर्डर जो आएगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। एक बात, दूसरा बात, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट के रो को फर्स्ट Second के के column से. सेकेंड के कॉलम से। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, सी द इंडियनाइजेशन ऑफ द टॉपिक, बिकॉज द टॉपिक इज written everywhere in a English format, or let us say the colonial kind of setup, which is not Indian. So if, but that can create, sometimes what happens, if you read some English author book and English writer book and some Indian writer book, so Indian writer book will be more easy and lucid to understand. Why? Because they are suited to Indian environment and Indian applications. What are Indian applications? The Indian exams. All right, that is why I Yes, am sir. urging you to Indianize that. So फर्स्ट Okay, के रो sir. को सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करना, तब तक मल्टीप्लाई करना जब तक कॉलम ख़त्म ना हो जाए, मल्टीप्लाई करना तब तक जब तक कॉलम ना ख़त्म हो जाए, जब तक कॉलम ख़त्म ना हो जाए। सो सी टू इट, है ना, व्हाट कैन यू डू, इफ़ यू कैन राइट इन एलिमेंट व्हाट्सएप। वाइज रह गया सर। हाँ बोलो। सर एलिमेंट वाइज रह गया सर। फर्स्ट के रो को सेकंड के कॉलम से एलिमेंट वाइज, ओके, एलिमेंट वाइज, हाँ। तो करो मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट के रो को सेकंड के कॉलम से, तो क्या आएगा, तो ए इंटू डी एलिमेंट वाइज, बी इंटू ई प्लस बी ई, सी इंटू एफ प्लस सी एफ। ओके, अब इसके बाद फर्स्ट के रो को सेकंड के कॉलम से तब तक करना है, तब तक जब तक कॉलम ख़त्म ना हो जाए। तो एक और कॉलम यहाँ पे होगा जी एच आई, तो इससे भी फिर मल्टीप्लाई करना, फिर अगला कॉलम होगा जे के एल, उससे मल्टीप्लाई करना, है ना, इस फॉर्मेट में। ये तो दैट इज़ इट। सो आई होप माई ब्रीफिंग्स आर क्लियर रिगार्डिंग हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू रिवाइज एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड वंस वी मूव फ्रॉम दिस चैप्टर। फ्रॉम 16 विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर कॉल वेक्टर अलजेब्रा। ओके, आई विल बी बीच बीच में मैं आपसे पूछता रहूँगा कि क्या चल रहा है, पीछे वाला क्या कर रहे हो, है ना। बीच बीच में आपको मैं पिछला भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो DAQ का है ना, उससे पूछता रहूँगा। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी शो यू दिस क्वेश्चंस, है ना। मैट्रिक्स में ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे उस दिन जब स्टार्ट किया था, तो अब आगे मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाते चलता हूँ। आपको जो पेन एक ले लो, आप बस एक पेपर ले लो, रफ कॉपी ले लो, और जो जो बोलूँगा एकदम जल्दी जल्दी आपके पास आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2017 है, उस पर स्टार्ट कर रहे हैं और 10-17 पर ख़त्म करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो ये बहुत आसान है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में तो ए और बी को अगर आपको घटाना है तो बस एलिमेंट बाय एलिमेंट घटा लो। तो -3 है, -3 तो -6 हो जाएगा, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। 3 है, -2 भी निकालना है, तो क्या करो, पहले इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, एक बात बताओ कि जितने भी लोग आ रहे हो, अभी आज हम 14th लेक्चर पे हैं, 13th लेक्चर तक देख लिया सबने कि अभी प्रोसेस में है कोई? Yes, sir. Completed. कंप्लीट हो गया? कंप्लीटेड सर। अर्शदीप कंप्लीट हो गया? यस सर। हाँ, क्षितिज? सर मेरे छूटे हुए हैं एक आध लेक्चर्स। हाँ, अच्छा, और बाकी सब देखा है? कहाँ तक देखा है, कहाँ तक देखा है? सर 3-4 दिन पहले मैं देखना मतलब मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो एग्जैक्टली याद नहीं मेरे। हाँ, तो देख लेना, ठीक है, आराम से टाइम निकाल के, क्योंकि उसमें एक भी कॉन्सेप्ट अगर मिस होगा ना तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप उसको देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्षितिज मेथड हाउ टू कवर बैकलॉग्स, है ना, हाउ टू ऑल्सो मूव फॉरवर्ड एंड हाउ टू ऑल्सो कवर बैकलॉग्स। द टेक्निक इज कॉल्ड 1+1+1 टेक्निक। ओके, यू गेट इट? यस सर। ओके, सो डू द नीडफुल। एंड प्रियांशी, आपका देखा है आपने पीछे वाला सब? सर 2 लेक्चर्स अभी कंप्लीट हुए हैं पूरे। ओके, नो प्रॉब्लम, बट धीरे धीरे करके आप कंप्लीट कर लो, है ना।
एंड डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। एंड मेक श्योर कि योर गाड़ी जो है आगे भी बढ़ते रहे और पीछे, एंड यूज़ द टेक्निक 1+1+1। वन मोर थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भैया आपके लेक्चर को देख के नोट्स बनाएंगे तो एक तो 2 घंटा का लेक्चर है, फिर आप नोट्स बनाएंगे तो वो 3 घंटा इसी में बर्बाद होता है। भैया नोट्स कैसे बनाए? देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट। व्हाट इज द सॉल्यूशन? You just take a A4 sheet page, right, and then keep a margin there, right? In this margin do one thing, write TFPDC. Just listen to me very carefully. And a TFPDC. And what is T? T stands for topic. Okay, T stands for topic. What is F? F stands for formula या फिर facts. And what is P? P stands for procedure. P stands for procedure. Okay, no need to worry about that. And DC stands for deep concepts. DC stands for deep concepts. So be attentive about what I am telling you now. So आपको क्या करना है, जस्ट वीडियो को, जो भी मेरा वीडियो है उसको 2x पे कर लो, है ना, इंक्रीज द स्पीड टू 2x एंड जस्ट लिसन टू इट एंड कीप अ पेन विथ यू एंड जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस. डू नॉट नोट एनीथिंग, डू नॉट मेक नोट्स. आई रिपीट, डू नॉट मेक नोट्स while watching my video. You will be surprised what I am telling, but I am telling right. Do not make notes while watching video. Just do one thing. Understand what is the procedure. Just understand what is the procedure. Okay, understand what is the procedure and how things work. बस यही करना है आपको नोट से. एंड सॉल्व करते रहो, बस इधर पूरा रफ करो, ठीक है. उसके बाद जैसे आप एक पेज रफ करोगे, बताओ अगर एक पेज रफ करोगे तो इसमें कुछ तो सिखाया होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1-2 वीडियो देखा है तो शायद पहले 2 वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट को सिखाया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को. एम आई राइट? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाया है. Yes, sir, that's what I Yes, do. sir. I don't make notes. I only solve the questions, and I after that I only write the formulas only, not any Yeah. make notes like that. Then you are doing good. I'm just giving a general briefing. Then just let me finish. So matrix multiplication, and then उस पर कुछ भी बताया होगा तो उसको पहले पूरा सीख लो. और उसके बाद जैसे मान लो आपने 15-20 मिनट देखा और एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आपका 1-2 पेज खत्म हो गया, तो फिर साइड में आप लिख दो कि यहाँ से आपने क्या सीखा. जैसे इसमें आपने क्या सीखा होगा, जस्ट जिस्ट लिखना है. इसमें आपको बस जिस्ट लिखना है. जिस्ट मतलब समझते हो? जिस्ट मतलब होता है आपका समरी शॉर्ट फॉर्म. तो इसमें आपने क्या सीखा, CR रूल के बारे में सीखा, है ना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते कैसे हैं उसके बारे में सीखा, एंड वॉट एवर द फॉर्मूला इंक्लूडेड. तो ये कर लो. ऐसे करके आपका जो 2 घंटे का वीडियो होगा, हार्डली जो अगर 2 घंटे का भी है तो 1 घंटे में हो जाएगा, अगर आप उसको स्पीड फॉरवर्ड करके भी देखते हो, क्योंकि उसमें बहुत बकवास का भी बात है, इधर उधर का भी बात है, तो इसलिए उसको 1 घंटे में आपका हो जाएगा. और उसके बाद 1 घंटे का जैसे ही आपका हो गया, उसके बाद आप उसमें जो है 15 मिनट आपको लगेगा फिर से फार्मूला वगैरह को नोट करने में. और फार्मूला आपको कैसे क्रिस्पली नोट करना है उसके लिए मैंने कितने बार आपको एग्जाम्पल दिखाया है ना. मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ. क्योंकि आप लोग बीच बीच में करके आ रहे हैं, कोई नया आ रहा है, कोई ये आ रहा है, इसलिए मुझे बार बार दिखाना पड़ता है. See, I'm just giving you what kind of formula sheet I liked. Okay, and it is up to you. You give it a thought. There are no comparisons. You give it a thought and you just ask yourself what will be better 2 days before exam, and just do the needful accordingly. Okay, we are all in the same game. Okay, trying to do something better for our families, our own self. Okay, now let me show you to this. This is the formula this girl has made. So इसमें क्या है, अगर आप देखो एक ही पेज पे कितना कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. देखो CR रूल है, यहाँ पे लिखा है A, उसके बाद ऑर्डर लिखा है, फिर इसका भी ऑर्डर लिखा है. यहाँ पे फर्स्ट का कॉलम जैसे जैसे मैंने लिखा है, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो के बराबर होना चाहिए. तो इसको पता भी चल रहा है कि फर्स्ट का कॉलम 1 है और सेकंड का रो 1 है, और नया ऑर्डर ये जो है 3-3, ये CR रूल, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स. उसके बाद A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. फिर डिटर्मिनेंट आपका है यहाँ पर. देखो डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए कैसे इसने क्रॉस कर दिया है. उसका ध्यान लिखा है डायगोनल वाले गाँव पे पॉजिटिव साइन लेते हैं, एल्स विल टेक नेगेटिव. सो दिस इज इट. एंड सी हाउ मेनी कॉन्सेप्ट आर प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अब यहाँ पर लिखा हुआ है. उसके बाद AB नॉट इक्वल टू BA, प्री मल्टीप्लायर क्या होता है, पोस्ट मल्टीप्लायर. ओके, AB इज इक्वल टू BA, इस तरह का बहुत सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एसोसिएटिव और भी. और इसका कितना लगभग 4 पेज का है, तो पूरा तो भेजी भी नहीं थी हमको, सॉरी. बाकी सब यहाँ दिया हुआ है. आई थिंक लगभग सब कवर है. ट्रायंगुलर, आइडेम्पोटेंट वगैरह पता नहीं कहाँ है, यहाँ है.
आइडेम्पोर्टेंट वगैरह यहाँ है, ए स्क्वायर बराबर ए एवरी यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो ए स्क्वायर बराबर ए लिखा है और जो इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो मैं आपको फार्मूला शीट दिखाऊँ। आपका फार्मूला शीट जो है ये फार्मूला शीट है। अब इस फार्मूला शीट में बच्चे क्या करते हैं, अगर आप फार्मूला लिख रहे हो तो ये तो लिखोगे ही आइडेम्पोर्टेंट में कि ए स्क्वायर बराबर ए होता है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये भी तो लिखना है, ये वाला एवरी यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये पता होना चाहिए। लेकिन इस लड़की ने भी फिर गलती किया है और एक चीज़ लिखना चाहिए था, कहाँ गया, इसमें एक चीज़ और मिसिंग है, पता है किसी को? एक चीज़ और लिखाएगा यहाँ पे, क्या? नहीं इसमें लिखाएगा क्या? नहीं इसमें नहीं लिखाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ लिखाएगा ना, यहाँ सही है सही है, यहाँ पे लिखाएगा ए स्क्वायर बराबर आई है, तो यहाँ पर ये भी लिखाएगा कि ए इन्वर्स किसके बराबर होना चाहिए, ए के। क्यों क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि अगर ए स्क्वायर बराबर आई है तो ए इंटू ए बराबर आई होगा, लेकिन आपको पता है कि ए को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, इन्वर्स से। तो अगर आप इस दोनों को मैच करेंगे तो ए के जगह पे क्या आ रहा है, ए इन्वर्स, मतलब ए बराबर ए इन्वर्स। तो मतलब आपको दोनों चीज़ पूछा जाएगा। ए स्क्वायर अगर ये भी दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स का बात हो रहा है। आपको हो सकता है ये ना दे एग्जाम में, ये ना दे, ये दिया हो, तो ये देख के, जैसे कल एक क्वेश्चन था ना अर्शदीप, जिस पे आपने बोला था, कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक मिनट रुक जाओ। अरे जिसमें ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए था। ये वाई क्यों था सर? हम्म, हाँ गया, रुक जाओ। हाँ ये रहा, देखो अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा। देखो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको खुद चेंजिंग वगैरह करने के लिए आना चाहिए कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ जाए तो ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे अगर आप निकालेंगे ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आता भी है, कल इसको सॉल्व कर चुके हैं, देख लेना, लेक्चर नंबर 13 में होगा वो। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट, हाउ टू मेक नोट्स इन अ वे। अब आप खुद पूछना खुद से बैठ के कि अगर आपके पास 15 पेज का नोट्स है और आपके पास जो है 4 पेज का नोट्स है, इसे तो इसे 3 पेज भेजा है मेरे को, इसे कंप्लीट भी नहीं हुआ है अभी जितना हुआ है। एक मिनट, इस जूम कैसे होता है, एक मिनट रुक जाओ। वो फैक्टर वाला देखो, अब जब जो मैंने वीडियो में पढ़ाया है ना, आप अगर देखो फॉर्मूला सीट से अगर नोट बना रहे हो तो वो अलग बात है, मेरे वीडियो में मैं जो बोल रहा हूँ उससे बना रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि फार्मूला सीट को और ज़्यादा रिसर्च करके फिर मैंने अपने वीडियो में बताया है कि उसका फार्मूला मतलब और मॉडिफाई करके क्या क्या टाइप हो सकता है। फार्मूला सीट में कभी भी आपको ये लिखा नहीं मिलेगा कि कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स ना होने का कितना केस है, वो हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया है सौर्य के साथ। सौर्य आपको बताया था ना उस दिन 4 केस है टोटल, आपने ऐड किया था, क्या क्या केस था? जब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन ए बी इज इक्वल टू बी ए हो भी सकता है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, लेट मी राइट, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसे तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, बट एनडी एग्जाम में आपसे एक्सेप्शन पूछा जाएगा, एक्सेप्शन। तो कब होता है, कब है ए बी इज इक्वल टू बी ए? तो सबसे पहला तो एक जो है एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, वो है डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ऐसा रहे तो आपका ए बी इजिकल टू बी ए हो जाता है ना। ये एनसीईआरटी में दिया है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे 1 2 0 0 और उसके बाद 3 4 0 0, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है। तो इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेना, बस ए बी कर लेना या फिर बी ए कर लेना, देखना चेक करके दोनों सेम आएगा। और बताओ सौर्य बताओ। भैया एक ए इनवर्स वाले में और नल वाले में, नल मैट्रिक्स ए 0 बराबर 0 ए बराबर 0,
ए इनवर्स इंटू ए बराबर ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। और बताओ और भैया टी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी में ना। दिस वे। और कल एक और भी था क्या, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी एक केस था कल, ये दिखा देता हूँ रुक जाओ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में देखो यस सर। ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब ये केस भी आ सकता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो मतलब अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तब हो सकता है कॉम्यूटेटिव। व्हाट आई एम सेइंग, अगर ए कैसा मैट्रिक्स हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो और बी बराबर हो ए ट्रांसपोज, आई एम सेइंग यू व्हाट कि ए आपका होना चाहिए कैसा मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, और बी बराबर क्या होना चाहिए ए ट्रांसपोज, तब ये दोनों कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ओके तो ये सब बात आपको फार्मूला शीट में तो नहीं मिलेगा ना, ये सब फार्मूला शीट में नहीं लिखा हुआ है, ये सब बात पे लाइव मेहनत किया गया है, रिसर्च किया गया है, तो ये सब बात आपको वहाँ मिलेगा, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप जो आपका वीडियो है उससे बनाएं। सी देर इज़ नो प्रॉब्लम, है ना। आप ख़राब क्वालिटी को लेके देखो, कहीं भी आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपका क्वालिटी अच्छा है तो इट इज़ गुड, लेकिन जस्ट बी ऑनेस्ट एंड आस्क योर सेल्फ कि इज इट कैन आई मैनेज इट 15 days बिफोर एग्जाम, and if the answer is no, just be very honest. There is a poem if by Rudyard Kipling, it says that if you can make a heap of all your winnings and pitch them on a toss of a coin and start again, then you will be a man Mason and the world will be yours. तो बस वही है, आपको अगर लग रहा है कि कुछ गलत है, rather than going that path thinking कि हो जाएगा, is a very wrong decision, है ना। just choose this time to sacrifice that and take the good path. Okay, this I can tell you from my experience. I have made lot of videos right earlier on YouTube, those were in very low quality. Okay, since now you are taking class from me, for 14 days, let me tell you, I've been making videos for like past 3 years, okay, on YouTube on various channels. But what I didn't realize that I was making video very low quality, and just for 7 days, okay, before NDA exam, I gave my 200% and just 7 videos, 5 videos in very good quality and give my bloody best, okay, and see what happened. Okay, I was able to create value. I then made video right regarding GAT. People were saying कि सर GAT पे बना दो, 20 तारीख को एग्ज़ाम था इंडिया का, उससे पहले I made the video and deleted it the day morning, है ना। video to make the video it took me right 7 to 8 hours, but then I realized that this video is not up to the quality that I am seeing. I deleted it right away. So that is the lesson, there is a lesson in that. Okay, never compromise on quality and never do something that your inner heart is already telling that this is not the way. I hope you get my point. Am I clear? Yes sir. Okay, सो वही बोल रहा हूँ, देखो इसने ना जो बनाया है पूरा, मेरा जो भी नोट्स में बोल रहा हूँ, जैसे ये वाला फार्मूला आपको नोट्स में फार्मूला शीट में कहीं नहीं मिलेगा। ये वाला फार्मूला, ये जो कोफैक्टर वाला फार्मूला है ना, ये फार्मूला शीट में कहीं है बताओ, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये वाला फार्मूला सिर्फ मेरे वीडियो में ही वहाँ पे डिस्कस हुआ था, तो वो लिखा गया था, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओके, नाउ लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस, कम बैक एंड आस्क यू अगेन। अब बताओ लालित्या, क्लियर? Yes, sir, clear. हाँ, तो अब आप अकॉर्डिंगली देख लेना, आपको जो सही लगे, ठीक है। Okay, sir. ओके चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं वापस। कहाँ थे हम? डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गया। आप देखो, मैं आपको जल्दी जल्दी स्कीम करके क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखते रहना और बताना। क्वेश्चन जो हल्का होगा उसको छोड़ देंगे हम, जो अच्छा क्वेश्चन होगा सिर्फ उसको करेंगे। ये सब क्वेश्चन हल्का है, इसको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है, सिर्फ देखते चलो। ए इजिकल टू डायगनल, तो ये डायगनल वाला बन जाएगा ना, डायगनल वाला, तो ये डायगनल Yes, मैट्रिक्स sir. तो 1 - 1 2 बाकी सब 0 0। तो ये DIAG करके हो सकता है, वहाँ पे भी लिख के आए आपका, है ना, NDA के एग्जाम में। तो DIAG करके लिख के आएगा, मतलब कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल पे एलिमेंट रख दो और बाकी सब 0 0 0 रख दो, ठीक है। और ये सब निकालना है, तो ये भी हल्का है, आई एम नॉट डूइंग इट।
बाकी इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट दिस एंड दिस, तो ये तो ठीक है, ये सब नॉर्मल है कि मतलब अगर डायगनल वाला है तो डायगनल वाला एंट्री सब ऐड हो जाता है बस A1 प्लस B1, तो नॉर्मल ऐड भी कर सकते थे अगर इसमें अगर वो करना हो तो 1 प्लस 2 तो 3 ही आएगा, देख लो यहाँ पे, और -1 प्लस 3 तो 2 आएगा, और 2 प्लस -1 तो डायरेक्ट भी अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, CBSE NCERT, कॉस थीटा से सबको मल्टीप्लाई कर देना है ना। कॉस थीटा रियल नंबर है, यहाँ भी सब एंट्री रियल है। आपको स्केलर के बारे में बताया गया था कि जो आपका k होता है ये स्केलर होता है, ये आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फिलहाल के लिए तो जितना भी केस हमने देखा है उसमें अगर अंदर रियल एंट्री होता है ना तो बाहर भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अंदर अगर रियल एंट्री है तो बाहर भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, रियल नंबर से, और अगर अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्री रहता है तो बाहर भी किससे मल्टीप्लाई होता है, कॉम्प्लेक्स से, है ना। कोई मिक्स केस तो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, तो इसी को ट्रू मानेंगे। तो सबको मल्टीप्लाई कर देना, और आपको पहले ही बताया गया कि इसमें मिक्स वेज क्वेश्चन आएगा। ये तो बहुत साधारण क्वेश्चन है, इससे जो लेवल का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप लोग कोई भी क्लास देखो ना देखो, क्लास नंबर कौन सा, एक मिनट, PYQ किस में डिस्कस किया था, PYQ डिस्कस किया आपका लेक्चर 13 में और आपका लेक्चर 12 में। आज 14 है ना, हाँ, ये दोनों ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जो है करीब 20 या 25 के आसपास PYQ कैसे एग्ज़ाम हॉल में बनाना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो डिस्कस किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो ज़रूर देख लेना बिफोर अटेम्प्टिंग एनी मॉक। बाकी कर लेना, ये आसान है। अगला क्वेश्चन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो वेरिएबल सॉल्व करने आपको आता ही है, क्या करेंगे इसमें, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा लेंगे। तो x प्लस वाई आपका जो भी दिया है क्या है ये, और x माइनस वाई, तो एक बार जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट, y कट जाएगा, तो x 2x आ जाएगा। तो इधर भी जोड़ो तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, फिर 0 0 0 2 0, ये 2 5 3 8, 2x का वैल्यू इतना आया तो ये इधर 1/2 हो जाएगा, डिवाइड करके आ जाएगा। फिर एक बार घटा लेना, घटा लेने से क्या हो जाएगा, अगर एक बार घटा लेंगे तो x माइनस वाई माइनस कर लेंगे, तो एक मिनट रुक जाओ, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2y का वैल्यू आएगा, तो वहाँ से ही आ जाएगा। ओके, अब आगे किसी को देखो, किसी को दिक्कत होगा तो बस रोक लेना मेरे को कि नहीं समझ में आया, राइट, झूठ का हाँ में हाँ से मत मिलाते रहना। अब देखो आगे, a प्लस ये बराबर ये है, तो बस इसको उधर भेज के घटा लेना, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यह यहाँ पे इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, ये पूरा एक प्रोसेस है ना, कि पहले a प्लस बी इक्वल टू सी है तो इसमें b घटाएंगे, है ना, तो फिर ये नल मैट्रिक्स आएगा, a प्लस नल मैट्रिक्स होता है, लेकिन अल्टीमेटली c में से b घटेगा ही, है ना, अगर इसको b मान ले तो घटा लेंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे एक्स वाई जेड टी निकालना है, अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगा देना, ये दोनों सेम हो जाएगा और इक्वेशन सॉल्व कर लेना। आगे देखो, NCERT एग्जाम्पलर एक बहुत बढ़िया बुक है, जिसका क्वेश्चन देखो अभी रखा है यहाँ पे, ये आपका पूरा NCERT एग्जाम्पलर का बुक है, ये आपको गूगल पे फ्री में भी मिल जाएगा, तो ये डाउनलोड करके रखना। और एक मिनट, इसका डिटर्मिनेंट का क्या हो गया, रुक जाओ, ये तो चैप्टर 3 का है आपका, ये आपका चैप्टर 4 का भी इसी में, तो आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड ऑल नॉन जीरो, क्वेश्चन को देखो, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो उसके आगे क्या लिख लेना, क्वेश्चन बनाने के बगल में लिख लेना RGDFC, फिर GD को घेर लो और GD को लिख लेना PA मतलब प्रॉपरली एनालाइज, गिवन को प्रॉपरली एनालाइज करना, डिमांड को भी प्रॉपरली एनालाइज करना। F से फैक्ट होता है और फॉर्मूला होता है, C से कैलकुलेशन होता है। इसके अलावा बहुत सारा टेक्निक होता है NDA में क्वेश्चन सॉल्व करने का, एग्जाम्पल लेके ट्राई करना, ये एक टेक्निक होता है। उसके बाद टेक्निक होता है वैल्यू पुटिंग, कोई वैल्यू लेके देखना जो सेटिस्फाई करे, मतलब कोई रैंडम वैल्यू नहीं रख सकते हैं, जो लीगल वैल्यू हो उसको लीगल वैल्यू रख सकते हैं, बस जो कंडीशन वगैरह को सेटिस्फाई करे। ओके, इसके अलावा तो यही है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लगाओ, मतलब कि अगर एक अप्रोच से नहीं बन रहा है तो थोड़ा सोचो कि इसके अराउंड क्या अप्रोच हो सकता है, बस यही सब टेक्निक होता है जिससे आ जाता है। R से रीड वेल पहला स्टेज है, पढ़ो। x को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ये और कंपेयर हो जाएगा, तो कर लो मल्टीप्लाई, फिर कंपेयर करके, है ना, सॉल्व कर लो, कंपेयर ही हुआ है और सॉल्व करके आ जाएगा। नॉर्मल बात याद रखना कि अगर x स्क्वायर 4 है तो x का वैल्यू +-2 आएगा और 2 आंसर आएगा, तो उसको ले लेना। आगे है मैट्रिक्स को देखो, ऐड कब कर सकते हैं, मैट्रिक्स कैन बी एडेड ओनली इफ दे आर ऑफ द एडेड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। आप दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। तो इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी कराया गया है, जैसे AB + BC, AB + CD मान लो, तो AB का जो ऑर्डर होगा वही CD का ऑर्डर होगा, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे।
तो याद रखना, मतलब इसमें कोई टर्म दे देगा और इसका बोलेगा, इसका ऑर्डर मान लो 3x2 है और इसका ऑर्डर है p×2, तो बोलेगा बताओ p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, sir. 3 sir. 3 होगा ना। Yeah, 3, sir. तो a इज इक्वल टू b, देन प्रूव दैट a इज इक्वल क्या है, a b c आर 3 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन a इज इक्वल टू b इम्प्लाइज a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी। तो सिंपल है, मतलब अगर a इज इक्वल टू b है तो दोनों तरफ अगर सेम नंबर जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसका रिजल्ट नोट कर लेना, है ना। देखो I have added RD Sharma, है ना। I think if you have watched my previous videos I have also shown you one example that एक क्वेश्चन डायरेक्ट था आपका कहाँ से, RD शर्मा से, और इसका जो लेवल वगैरह है मैच करता है आपका एनडीए के एग्जाम से। ओके, जैसे कल एनडीए का पीवाईक्यू कर रहे थे, आई थिंक वेक्टर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन कभी दिखाया था कि कोई किसी ने देखा था वो वाला वीडियो जिसमें वेक्टर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन था कहाँ से, RD शर्मा से। वो वीडियो देखा है? नहीं देखा है, नहीं याद होगा, देख लेना, है ना। वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन था, मतलब शुरू में वो क्लास वगैरह में बच्चा लोग बोल रहा था कि जेई मेंस का आता है, जेई मेंस का आता है, उसको दिखाने के लिए फिर मैं उसको प्रूव कर रहा था कि देखो RD शर्मा का आता है। आप कोई बोल रहा है इस बुक से कर लो, उस बुक से कर लो, मेन बात है कॉन्सेप्ट का। हम लोगों ने तो ये नॉर्मल सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा और एक फार्मूला सीट पढ़ा, और कल जाके देख लो यही बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए, सब क्वेश्चन बनाया है ना। तो बात है कॉन्सेप्ट का। ओके, और ये सब फालतू के चक्कर में मत रहना कि जेई का आने लगा है, ये का आने लगा है। यार मैथ आ रहा है, मैथ सीखो और तुम्हारा बन जाएगा, नॉर्मल दिमाग है। ये देखो RD शर्मा से अगर प्रूफ करें कि RD शर्मा से ही आता है, तो ये क्वेश्चन अगर, एक मिनट रुक जा, ये तो आपका इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, ये देखो इसका MCQ का क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये मैट्रिक्स आपका कौन सा मैट्रिक्स है, देखो तो बताओ। एक्सक्लूसिव अब Squash हाँ, matrix. अब ऐसा इसका मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं एनडीए में, क्योंकि ऐसा इसक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स वो लोग भी दे रहे हैं। ओके, तो वही बात है। देखो फिर यहाँ पे इन्वर्स वगैरह मिक्स किया है। ओके, तो यहाँ से आपको जो है बहुत सारा चीज़ जो है मिलता हुआ दिखेगा, और एक आपका कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन इसमें था। ओके, ये एक बहुत बढ़िया सोर्स है आपका अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। देखो यहाँ पे आपका इसके लिए भी दिया हुआ है, तो इसको आपको पूरा सॉल्व करके जाना है। आई विल बी अपलोडिंग इट, इसको आप पूरा धीरे धीरे करके सॉल्व करना, जितना हम डिस्कस करे उसके अलावा भी, और हो जाएगा। और जो नहीं हो उसको, उसका फ़ोटो लेके मेरे पे भेज देना, मैं कर दूंगा सॉल्व। इसके लास्ट में अगर लेके चले तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। ओके, देखो तो यहाँ देखो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री इसमें भी मिक्स है, और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में समेसन भी मिक्स है अगर समेसन का कभी पूछा गया तो। और देखो ये क्वेश्चन, दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर एनडीए में क्वेश्चन था किसके रिगार्डिंग, कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग था, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो दिस इज इट। मतलब पूरा नहीं करना है ना, लेकिन जो उसके अराउंड है, जो नॉर्मल नॉर्मल सवाल है वो आप कर सकते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन। अब जो बहुत आगे जा रहा है ना, बहुत इधर उधर का है, बहुत भारी भी आपका उसमें नहीं आएगा एनडीए में बहुत, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है जेई मेंस के लेवल को भी टच करेगा। तो वो सब अगर आप देख लेना, है ना, जो बनता है, जो नहीं बनता है सेंड इट टू मी, है ना, सब बना के फिर कंपाइल कर देना उसको। ओके, अब वापस आते हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स 2a प्लस बी प्लस एक्स इजिकल टू हो, तो भी बहुत आसान सवाल है। लेट मी मूव, सब कुछ रख देना और x निकल जाएगा। फाइंड अ मैट्रिक्स a सच दैट 2a, ये इसमें भी बहुत आसान सवाल है, b रख देना, c रख देना, a निकाल लेना। जैसे नॉर्मल तुम इसको सॉल्व करोगे ना, 2x प्लस 3y प्लस 5z इजिकल टू 0, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे ही इसको उधर भेजेंगे ना, -5z माइनस 3y, तो बस जैसे इसको, और फिर x को कैसे निकालेंगे, -5z माइनस 3y/2, तो बस सेम प्रोसेस है। अब क्या है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये थोड़ा अच्छा है तो इसको देख लो। तो इसको 3 अंडर मल्टीप्लाई करना, उसके बाद ये x² माइनस 3x, y² माइनस 6y माइनस 2 9, फिर x² माइनस 3x इक्वल टू -2, y² माइनस 6 y इक्वल टू 9, और x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और ये यहाँ से x का वैल्यू आएगा ये 1 और 2, और y का वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये आपका तरीका है। ये पता है ना आपको, ये फॉर्मूला पता है ना? Yes, sir. ये फॉर्मूला में ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू है -6, सी का वैल्यू है -9। सब रख देना, ये y आ जाएगा। तो हो गया सॉल्व। आगे 2 किसान हैं, राम किशन और गुरुचरण सिंह। ये सब बनाना, ठीक है। कल्टिवेट ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस। उनका कोई ठीक नहीं। आप तुम अगर वर्ड प्रॉब्लम दे दिया तो फिर वहाँ बैठ के रोओगे क्या, अरे आपने तो वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, है ना। इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। 2 फार्मर्स राम किशन एंड गुरुचरण सिंह जस्ट रीड विल कल्टिवेट ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस। मैं पढ़ दे रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन याद है। नेमली बासमती, परमल एंड नौरा। मतलब 2 किसान हैं, 3 वेराइटी ऑफ राइस उगाते हैं, बासमती, परमल और नौरा। सेल दिया हुआ है इन रुपीज ऑफ दिस मैट्रिसेज बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर में कितना हो रहा है और अक्टूबर में। ये जो चार्ट है ऊपर वाला ये सितंबर का है, जो नीचे वाला है वो अक्टूबर का है। क्या निकालना है? कंबाइंड सेल। तो कंबाइंड सेल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे बताओ? प्लस सर। हाँ तो भाई प्लस कर दो। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, व्हाट वाज द चेंज इन सेल। चेंज इन सेल निकालने के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। और तीसरा है, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस रुपीज सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में कितना प्रॉफिट हुआ? तो अक्टूबर में जो प्रॉफिट हुआ वो 2% है, तो इसका 2% निकाल लो, मतलब 2/100 से सबको डिवाइड कर दो। तो 2/100 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके ये प्रॉफिट आ जाएगा। आगे ये सब क्वेश्चन है, आप देख लेना। अब ये सब तो देखो एग्जाम्पल मैं अब कर देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज में तो फिर एग्जाम्पल का ही रिपीटेशन होता है, ऑलराइट। तो एक्सरसाइज आप देख लेना, ओके। Yes, sir. चलो आगे। ये क्वेश्चन अच्छा है। मंथली इनकम आर्यन, बब्बन, आरिंदर रेशियो 3:4, एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:7, ईच सेव इतना, फाइंड देयर मंथली इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये तो क्या दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है ना। इनकम को मान लो कुछ 3x 4x मान लेते हैं। इनकम ये आर्यन का इनकम हो गया और ये बब्बन का इनकम हो गया। और एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर 5y मान लेते हैं और 7y मान लेते हैं। तो क्यों अलग अलग रेशियो इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि इनकम एक अलग रेशियो है और एक्सपेंडिचर एक अलग रेशियो है, इसलिए अलग अलग मानेंगे। और आपको पता है, मान लो अगर आप देखो मान लो अगर आप 500 रुपये आप कमाते हो, उसमें से आप 200 खर्च कर देते हो, तो आपका जो सेविंग्स है कितना का हो जाएगा 300। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके क्या आता है, सेविंग्स आता है। सिंपल सा बात है, दोनों कितना रुपया का सेविंग करता है, 15,000 का। तो 15,000 का ये भी करता है और 15,000 का ये भी करता है। तो आपको निकालना है फाइंड देयर मंथली इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालेंगे? तो इनकम का एक मैट्रिक्स बना लो, एक मैट्रिक्स इनकम का बनाओ, तो कैसे हो जाएगा 3x 4x। और एक मैट्रिक्स आप बनाओ एक्सपेंडिचर का, तो ये हो जाएगा 5y 7y। और एक मैट्रिक्स आप बनाओ सेविंग्स का, सेविंग्स का कितना हो जाएगा 15,000 15,000। बस इस दोनों को माइनस कर लो और सॉल्व कर लो। 3x - 5y 15,000 और 4x - 7y 15,000। ये सॉल्व तो हो जाएगा ना? ओके, यस और नो, जल्दी जल्दी Yes, sir. कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखा देता हूँ जब आप सॉल्व करोगे। इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है 22, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ ना, नो प्रॉब्लम, कर लेना सॉल्व। और ये क्या है, दिस प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट्स विच वैल्यू, क्या वैल्यू क्या दिखा रहा है बताओ। ऐसे तो एक वैल्यू पूछेगा नहीं आपको, फिर भी ये तो अभी नहीं पता चल पाएगा यार कि ये वैल्यू क्या दिखा रहा है। इसका वो निकालना इनकम कितना है, तो फिर पता चलेगा कि फिर क्या वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इनकम पहले पता लगेगा, उसके बाद देखो कि इनकम में कितना सेव कर रहा है, तो बस यही दिखाएगा कि सेविंग्स वगैरह करना चाहिए, और क्या वैल्यू दिखाएगा। आगे मल्टीप्लिकेशन तो बता ही दिया ऑलरेडी।
और एक आपका मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ बताया था आपका साइन चेक करने के लिए कि डायगोनल लोकेशन, डायगोनल वाले गांव पे पॉजिटिव साइन लेते हैं और नॉन डायगोनल वाले गांव पे निगेटिव। लेकिन इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, -1 to the power i+j, यही है ना, -1 to the power i+j। इससे करते हैं साइन चेक, इससे करते हैं साइन चेक। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पोजीशन है तो ये a11 है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो -1 का स्क्वायर कैसा साइन देगा, पॉजिटिव। और इस पे चेक करेंगे तो 1 और 2 जोड़ के ऑड आएगा, तो ऑड पावर नेगेटिव साइन देगा। तो ये चेक करने का तरीका है, बाकी तो सब सेम है। ये सब समझ में आता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये देखो, तो ABIJ जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसमें आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, AI1B1J। तो AI1 को कैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो B1J से, तो बहुत आसान है। अगर आप सोचोगे तो ये ith रो और फर्स्ट कॉलम को आप, ये जो आपका ith रो फर्स्ट कॉलम को है फर्स्ट रो और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसके नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे, तो सेकेंड रो से फिर कर रहे हैं, फिर इस तरह से। तो आप अगर गौर से देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपका जो फर्स्ट एंट्री है, ध्यान से चुपचाप देखो समझ में आ जाएगा, जो आपका फर्स्ट एंट्री है वो तो इसी रो में रह रहा है, वो आपका हमेशा इसी रो में रह रहा है। तो इसलिए हर जगह आई दिखेगा आपको, देखो यहाँ भी आई दिखेगा, यहाँ भी आई दिखेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो आपका ये फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री तो आप इस यहाँ से पिक कर रहे हो, तो इसमें तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हर जगह आई दिखेगा आपको फर्स्ट एंट्री पे, क्योंकि उसका रो सेम रह रहा है। लेकिन जो सेकेंड एंट्री है उसमें रो बदलेगा, देखो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर r है, क्योंकि ऐसे ही तो होता है। आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो रो चेंज होगा ऑब्वियसली, लेकिन कॉलम चेंज नहीं होगा। ओके, गेटिंग मी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि r बराबर 1 से लेके, तो देखो r चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें चेंज क्या कर रहा है, देखो, तो ये जो आपका r है ये चेंज कर रहा है। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, फिर गौर से देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर आगे 3 होगा, फिर r होगा। यानी कि 1 और 1 चेंज करके फिर 2 और 2 हो गया, फिर 3 और 3 हो जाएगा, मतलब r और r लिख सकते हैं। तो लेकिन i और j चेंज नहीं कर रहा है, तो देखो i और j चेंज नहीं किया, और r और r। तो ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म समझ में आ गया, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म। बताओ येस और नो। यस सर। Yes, sir. एग्जाम में ऐसे, एग्जाम में कैसे याद रहेगा, एक ए लिख दो आप, एक बी लिख दो, एक ए लिख दो, एक बी लिख दो, एक बार यहाँ आई लिख दो, एक बार यहाँ जे। तो देखो आई एक बार जो फिक्स हो गया वो चेंज नहीं होगा, और जे जो फिक्स हो गया कि जिस कॉलम से करना है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आर करना है, और यहाँ पे आपका आर करना है, और उसके बाद आर बराबर 1 और यहाँ पे एन, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आपका ऑर्डर पर्टिकुलर लिया गया है ना, कॉलम मैट्रिक्स लिया, यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, मतलब बेसिक सा बात है यहाँ पे। लेकिन आगे अगर जाएंगे तो जे भी चेंज करेगा, डू यू एग्री? Yes, sir. तो जे भी चेंज करेगा, तो वो आप देख लेना, उतना कॉम्प्लिकेटेड अभी इस स्टेज पे आपको बनाएगा नहीं, है ना, बस लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ए बी आपका है, ठीक है ठीक है। तो एक गुना तो आता है आपको, मैं कोई अलग क्वेश्चन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इन दिस केस बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ ऐसे तो आपको पता है ना, ए बी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हो सकता है बी ए एग्जिस्ट ना करे, ऐसे तो होता ही है, सी आर रूल फॉलो नहीं होगा। तो ए और बी, फाइंड ए बी एंड बी ए सो डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये तो है ही, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता ही है, वो तो जनरली वही है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव इन जनरल, तो ये तो कोई नया बात है नहीं। एसोसिएटिव होता है, ये तो हो गया, है ना। देखो कोई भी नया सिचुएशन आए ना, देखो आई एम नाउ आई एम नॉट डीलिंग ऑल ऑफ दिस, लेकिन फिर भी आप ना कोई भी नया सिचुएशन आए, बहुत रेयर चांस है कि एनडीए में आपका ये सब सिचुएशन कभी भी आएगा, है ना, बहुत रेयर चांस है, 0% फिर वो अगर सवाल अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर किसी से नहीं बनेगा, है ना। तो उसमें आप तो दिमाग नहीं लगाना। तो पहले क्या करना कि सब क्वेश्चन बना लेना, अगर कोई ऐसा सवाल कभी आता भी है ना, विच अगेन 0% चांस, तो फिर उसको मतलब हार मत मानना, उस पर सोचना। जैसे देखो इस पर सोचने से आंसर आ गया ना, इस पे सोचने से समझ में आ गया, थोड़ा देर सोचने से समझ आ गया, तो उसको लास्ट में सोचना, मतलब स्टार्टिंग में मत सोचना, लास्ट में सोचना। इसलिए अभी तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, है ना, बस इस पे रहते हैं। आगे ए बी सी, ये तो ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी, ये भी ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी, सी अंदर गुना, ठीक है, प्रूफ का जरूरत नहीं है।
ये वाला ए इज अ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ओके, ए एक मैट्रिक्स है आपका एम क्रॉस एन का, देन आई एम इंटू ए इज इक्वल टू ए। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये देखो। तो अगर ए आपका एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो आपको इतना तो पता है ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। तो वही बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर आप एम को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एमएथ ऑर्डर ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एमएथ ऑर्डर ले लेते हैं और उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आंसर आपका ए आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनएथ ऑर्डर ले लेते हैं, तब भी उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आपका जो है आंसर यही आएगा। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, जब एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट मल्टीप्लाई, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, जब एम वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है ए का, ये आपका पोस्ट मल्टीप्लाई है। और जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू आई एन, तो ये कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्री मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको वेरीफाई अगर एक बार आप करेंगे तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बताओ, आई एम इंटू ए अगर करें तो ए का ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन, यहाँ दिया हुआ है। आई एम का ऑर्डर कौन बताएगा मेरे को, बताओ आई एम का ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एम। एम क्रॉस एम। अब सी आर रूल वैलिड होगा कि नहीं होगा, सी आर रूल क्या था, यस सर। सी आर रूल फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल है ना, तो जो नया मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई होकर एम क्रॉस एन ऑर्डर का आ जाएगा। और एम क्रॉस एन ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, ए है। क्लियर है सब कुछ। अब आगे ये मल्टीप्लाई करो इसको, ए अब इसको मल्टीप्लाई करो ए आई एन को, तो ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और एन का ऑर्डर क्या होगा, एन N क्रॉस cross एन। N. नया ऑर्डर एम क्रॉस एन आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आई एन इंटू ए कर सकते हैं, ये देखो क्या आई एन इंटू ए कर सकते हैं, तो ये आपका एन क्रॉस एन है और ये एम क्रॉस एन है, वी कैन नॉट डू दैट। सी Yes, sir. दिस इज अ वेरी डीप ट्रिक यहाँ पे। तो एक तो समझा दिया पूरा, फिर याद करने के लिए कोई ट्रिक वगैरह बना लो फिर इसको, है ना। तो इसको याद करने के लिए ये है कि एम अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, एम आता है, तो एम वाला पहले आएगा। और अल्फ़ाबेट में बाद में कौन आता है, एन आता है, तो एन वाला बाद में आएगा। ओके, लॉजिकल है, लॉजिकल। Yes, sir, it is logical. तो बाकी ठीक है, आई विल ट्राई टू टेल यू समथिंग लॉजिकल। अगर मेरा लॉजिकल ना लगे तो आप अपना भी कुछ बना लेना। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स, हाँ ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स वाइल नाइदर ऑफ देम इज द नल मैट्रिक्स। ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि हो सकता है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपका नल मैट्रिक्स आ जाए, लेकिन उसमें से एक भी आपका नल मैट्रिक्स ना हो, ऐसा हो सकता है। ओके, जैसे ए बराबर ये आपका है, ये भी है आपका। अच्छा, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कोई बता सकता है? स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर सर। आई एम वेरी गुड इम्प्रेस्ड। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। देखो अगर किसी को याद आ रहा है मतलब डेट मीन्स हिज रिवीजन, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है डेट मीन्स योर रिवीजन। सो यू सी कहाँ पे वर्क करना है। ओके, यहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर ये डायगोनल एंट्री जीरो होता है ना, अगर डायगोनल एंट्री जीरो होता है तो उसको स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर बोलते हैं। और ये स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर के अलावा और क्या है, अरे ऊपर में एलिमेंट है तो ये क्या है फिर? Sir, upper triangular matrix. यस यस, वेरी गुड, अपर ट्रायंगुलर। ओके, ये सब पढ़ाया गया ऑलरेडी। डन, ये आपका नल मैट्रिक्स है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स। लेकिन ये भी नल नहीं है, ये भी नल नहीं है, फिर भी नल आ रहा है। ओके, तो उसको याद रखेंगे। बाकी आगे चलते, थ्योरम 5। देखो अगर ए आपका एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना आप, ए अगर आपका एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, वो आपका एक नल मैट्रिक्स है, तब अगर ए को आप ओ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है ये आएगा आपका एम क्रॉस पी। नल मैट्रिक्स तो देखो, नल मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स जो है आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, इसलिए ऑर्डर इसका कुछ और ही है। ए का तो एम क्रॉस एन है और ओ का ऑर्डर कुछ और है, एन क्रॉस पी है। ओके, तो इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सबको पता है कि ये दोनों सेम हो जाएगा, तो एम क्रॉस पी का नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ए को अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा। और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब हो रहा है, ये सब तो बहुत आसान है। जिसको सी आर रूल पता है, यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सी आर रूल फॉलो हो रहा है। फिर यहाँ पी क्रॉस एम बहुत आसान है आपके लिए, ये दोनों हाइड कर लो तो पी क्रॉस एन आ जाएगा। मतलब बेसिक बात है कि नल मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे
अब देखो यहाँ पे क्या शिक्षा देखने के लिए मिला। मैं आप देखो एनडीए का क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ए इंटू जीरो ऑलवेज जीरो, ये बताओ क्या, या फिर ए इंटू जीरो ऑलवेज, यस हाँ ऑलवेज जीरो ऐसे। यस सर। Yes, sir. नो सर। क्यों? देखो अगर ए का आपका ऑर्डर है एम क्रॉस एन और आपका ये जो नल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है कुछ और पी क्रॉस क्यू, तो ए और जीरो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है Yes, sir. क्षितिज? यस सर आया। हाँ तो बस यही डेप्थ तक सोचना है आपको, ठीक है, कि मल्टीप्लाई ए जीरो मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि जो आपका जीरो मैट्रिक्स है वो आपका तो कुछ भी हो सकता है ना, वो आपका जीरो 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 ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक आपको डिपेंड करता है ना ए क्या है आपका, 1 2 3 4। अब ए का ऑर्डर आपका है यहाँ पे 2 क्रॉस 2, लेकिन इसका जो ऑर्डर है कुछ और बना लेते हैं इसको, इसका ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 3, तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, यहाँ पे सी आर रूल फॉलो ही नहीं होगा। तो ए जीरो इज नॉट ऑलवेज जीरो, ओके, बट ऑलवेज जीरो वेन एवर ए जीरो इज डिफाइंड, ओके, वेन एवर ए जीरो इज डिफाइंड। तो यही सब डेप्थ के बारे में आपको सोचना है। इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो देन इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट बी ए इज इक्वल टू जीरो। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट, इसी के लिए मैं आपको इस किताब पे लेके आऊँ, ओके, इस रिमार्क्स सब के लिए जो ये रिमार्क्स लिखा है इसको आपको नोट्स में ऐड करना है। इन दिस केस ऑफ जब अपलोड कर दूँ तो सारा रिमार्क्स और सारा जो एग्जाम्पल है उसको नोट्स में ऐड कर देना, सारा रिमार्क्स को और सारा जो आपका एग्जाम्पल में जो भी शिक्षा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, केस जो भी दिया हुआ है, क्वेश्चन का रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, वो ऐड कर देना नोट्स में, ऐड इन नोट्स, यही है। बाकी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको कुछ शिक्षा मिले, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से कुछ शिक्षा मिले तो उस शिक्षा को भी आप एक्स्ट्रा अपने कहाँ ऐड कर देना, नोट्स में ऑन कलरफुल पेपर, या उस समय उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेना अपने पर्सनल जो ग्रुप बनाने के लिए बोला था, व्हाट्सएप पर्सनल ग्रुप। इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो देन डज नॉट नेसेसरी, तो एग्जाम्पल से है देखो ए बी जीरो आ रहा है लेकिन बी ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, बी ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। आगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ए पावर 1 ए पावर n प्लस 1 आपका होगा ए एन इंटू ए, जहाँ n नेचुरल नंबर है आपका, ए पावर एम एन, ए पावर m प्लस n, एम एन तो ये n ऐसे, या ए एन भी इधर कर सकते हैं, m ऊपर कर सकते हैं। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, एफ एक्स इजिकल टू, अगर आपका ये है ए जीरो एक्स एन, ए वन एक्स एन माइनस वन, ए टू एक्स, पॉलिनोमियल फंक्शन तो बेसिकली आपका एक्स वगैरह में वेरिएबल होना चाहिए, तो ये आपका वो है पॉलिनोमियल। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के लिए एफ ए डालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए डाल दो, तो बस ये ए आपका मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स डाल दो, तो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये तो आप देख ही चुके हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i, ऐसा देखा है ना आपने, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो वही है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, 3a प्लस 2i। अब आगे चलो, ए बी सी निकालना है, ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका ऑर्डर लिख लेना, कितना है इसका ऑर्डर, 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद 1 क्रॉस 3 आएगा, फिर इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसका आंसर एक सिंगल आंसर आएगा, सोचो एक सिंगल आंसर आएगा इसका। देख रहे हैं, इसका आंसर एक सिंगल 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ये देखो ये आपका यस सर। ये आपका जो रो है और फिर ये आपका एक ही कॉलम है, इसमें 3 कॉलम नहीं है, दिस इज जस्ट 1 कॉलम, फाइनल ऑर्डर, दिस इज नॉट 3 कॉलम्स, ओके, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज ओनली 1 कॉलम, प्लस लिखा है। Yes, sir. तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था, फर्स्ट के रो को सेकंड के कॉलम से एलिमेंट वाइज, तब जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए, एक ही कॉलम ही है तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दो, इसको इस पूरे से करेंगे, फिर y को इस पूरे से करेंगे, फिर z को इस पूरे से करेंगे, ओके।
यस सर। ओके ओके। देखो क्या है कि इसको इस सब क्वेश्चन थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि एनडीए का जो क्वेश्चन सब होगा ना उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, या कैलकुलेशन होता है फिर आगे चल के। तो या फिर किसी किसी स्टेज पे आपको हार नहीं मानना होता है, कि जैसे बहुत बच्चे क्या करेंगे इस स्टेज पे आके फिर कैलकुलेट करने का छोड़ देंगे कि आगे क्या पता नहीं आंसर आएगा नहीं आएगा, ये तो कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। बट एनडीए चेक्स दैट योर पेशेंस, योर कामनेस, कि आप कितना आगे तक कैलकुलेट करते हो। दैट इज़ वाई आई हैव एडेड दिस क्वेश्चंस. So make sure you practice handful of that. Okay, I'm not telling to do whole lot of 500 600 questions, but make sure you practice till the point you realize that you have confidence that now I can do questions. A plus b square not equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, ये बराबर नहीं होता है, रिजल्ट याद कर लेना है ना, क्वेश्चन से फाइनल रिजल्ट ऐड करना। ये जैसे आप देखो नोट्स में इसको ऐड करना है, नोट्स में तो a प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू दिस, तो a यहाँ पर है, इसमें तो नॉट इक्वल टू रहा है इन जनरल। फिर अब देखो ये तो इस केस में हो रहा है, इन जनरल होता है नहीं होता है, उसको देख लेना कि ए प्लस बी का स्क्वायर इन जनरल बराबर होता है उसके लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का जो ऑर्डर होगा वही 2ab का होगा, वही बी स्क्वायर का होगा ना। यस सर। ये Yes, सब sir. आप हाँ, ये इसी को मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, आपको ये सब थोड़ा सोचना है अलग अलग एंगल्स। आगे ये क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये गिवन है, ये आपका गिवन है। फाइंड ए एंड बी, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का आई थिंक एक क्वेश्चन आया भी है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये प्रैक्टिस कर लो है ना। तो इसको सॉल्व बस, इसमें इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, जो बोल रहा है बस उसी तरह से रख दो है ना, वैसे रख भी सकते हैं। तो जैसे ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी निकाल लो, फिर उसका स्क्वायर है तो फिर मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन एक तरीका और है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एक तो डायरेक्ट भी है, अगर आपको डायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट कैसे बनेगा, डायरेक्ट तो ये है कि आप पहले ए प्लस बी निकालो, तो 1 प्लस ए आएगा, जो भी निकालो इसको, 1 प्लस ए आएगा, फिर आपका 0 आएगा, फिर 2 प्लस बी आएगा, फिर -2, फिर उसका स्क्वायर करो, मतलब फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ए स्क्वायर निकालो, फिर सॉल्व करो, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी है कि हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, ये ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, तो देखो ए जो है, देखो ए प्लस बी जो है ये पूरा ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ, और ए प्लस बी फिर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी से, तो यहाँ, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ऐसे होता है ना, ए प्लस बी इंटू सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से क्या होता है, सी इसको भी मिलता है और सी इसको भी मिलता है। तो वैसे ही तुम चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये पूरा सी की तरह था आपका, तो अंदर भी मिला, उसको भी मिला, उसको भी मिला, है ना, मतलब ये इसको भी मिला, उसको भी मिला, हो गया ये। उसके बाद अब मल्टीप्लाई कर लो अंदर फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी ए, मतलब यहाँ पे देखो पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो पोस्ट ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यू कैन नॉट राइट ए बी, डू नॉट डू दैट। देखो ए स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ पे बी ए है ना, तो वी कैन नॉट राइट ए बी, वाई, बिकॉज ये पीछे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पोस्ट ही होगा। फिर यहाँ पे ए के पीछे बी, फिर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी ए प्लस बी ए बी आपका ये आएगा नल मैट्रिक्स। अब बी रख देना, ए रख देना, ये रख के सॉल्व करके सब आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके डन। यस सर। तो इसी तरह Yes, का sir. क्वेश्चन, Done. हाँ, तो ये वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें फॉलो द क्वेश्चन, बस ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, देखो पी वाई क्यू में भी शायद आया है, लेट मी शो यू। इसका सेम क्वेश्चन आया, दिखा था, एक तो यहाँ है, देखो ए पावर 100 निकालना है इसमें, तो देखो अब कोई इसको देखेगा तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, ए पावर 100 निकालना है, तो वही बच्चा फिर सॉल्व नहीं करेगा, बोलेगा ये क्वेश्चन भारी है। बट दिस इज़ नॉट हार्ड, ए पावर 100 निकालना है, ए पावर 50 निकालना है, तो कम से कम आप ए पावर 2 तो निकाल के देखो, कम से कम ए पावर 2, तो ए पावर 2 क्या होगा, तो 101 अल्फ़ा 101 अल्फ़ा 101 अल्फ़ा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा,
फिर 0 और 0 0, फिर अल्फ़ा मतलब 0 और 1, ये आएगा। तो ये तो यही आ रहा है। ए क्यूब अगर निकाले तो इसको एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 0 2 अल्फ़ा 1, फिर आपका 1 अल्फ़ा 0 1, मल्टीप्लाई करो 1 1 और 0, ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 0 और 0, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट से कर लिया, सेकेंड को सेकेंड कॉलम से, अल्फ़ा 1, ठीक है। अब देखो कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है। जब ए स्क्वायर निकाला और जब ए क्यूब निकाला, ये ए क्यूब है आपका, ये ए स्क्वायर है। बताओ कुछ पैटर्न है? यस सर। बस, तो जब पैटर्न है तो उस हिसाब से ही होगा, उस हिसाब से पुट करो। यानी कि जब 3 है तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा आता है, जब 2 है तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा आता है, तो 100 है तो क्या आएगा? 100 अल्फ़ा। उसके बाद आगे 50 अल्फ़ा आएगा। सी हाउ इज द क्वेश्चन, प्रोवाइडेड कि इफ़ यू कैन कीप पीस विथ योर माइंड एंड इफ़ यू कैन हैव द करेज टू ट्राई। सो 1 1 0, दे वांट पीपल लाइक दैट। 25 अल्फ़ा। अब सॉल्व हो जाएगा ना। तो ये आपका 100 यहाँ है, यहाँ 50 है, और ये 25 से गुना होगा तो 50 हो जाएगा। तो सब कैंसिल करके 0 हो जाएगा, तो मतलब 1 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 1 आएगा। एक मिनट रुक जाओ, 1 -1 0, और फिर उसके बाद -2, तो -2 आएगा यहाँ पे, -2। उसके बाद यहाँ पे भी -2 ही आना चाहिए, क्योंकि 1 -1 0 -2, तो मतलब यहाँ भी -2 आएगा। ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो -2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 1 0 0, तो -2 आई इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. ओके, तो इस तरह का वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन आता है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज ए इक्वल टू। अच्छा, सबसे पहले इस पे आ जाते हैं, उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन आया ना वैल्यू पुटिंग वाला, और अब आर डी शर्मा पे लेके चलता हूँ। आ गया, ये देखो यहाँ भी इस तरह का लगभग क्वेश्चन है। एक्स आई प्लस वाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और जो एन डी ए का आपका पी वाई क्यू है, ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम है ना लगभग। बताओ एक बार देखो तुम, ये क्वेश्चन देखो, ये आपका आर डी शर्मा का है, ठीक है। एक्स आई प्लस वाई का स्क्वायर ए है, और अब एन डी ए का देखो, कुछ समझ में आ रहा Yes, sir. है? सो नाउ यू नो द सीक्रेट्स, सो फॉलो दैट एंड देन प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। बस उसने देखो क्या वेरिएशन किया है, आर डी शर्मा से क्वेश्चन उठाया, कहाँ गया, यहाँ से, बस क्या वेरिएशन किया है, यहाँ 1 के जगह 2 रख दिया है, बस ख़त्म, और नया क्वेश्चन बना दिया है। आ गया, देखो वही किया है। Yes, sir. तो नाउ जस्ट सॉल्व दैट, आर डी शर्मा वाला करो सॉल्व। तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो इसको सॉल्व करने के लिए ए आपका ये है, और पहले ये निकालो, जो भी है ना वो निकालो, एक्स आई प्लस वाई ए निकालो, फॉलो एज इट गिवन। तो एक्स और आई के जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये सब सेकेंड ऑर्डर का है, तो ये भी आपका 2 ऑर्डर का ही होगा। वाई ए सबको सॉल्व कर लो, उसके बाद आपको कितना आ रहा है, ये आ रहा है। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, फिर ए के बराबर, फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह कर लो। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो अब कॉपी वगैरह करके ये सब आ रहा है। उसके बाद यहाँ से तो 0 आया, 2x y इजिकल टू 1, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0, 2x y इजिकल टू 1। यहाँ से भी वही आ रहा है,
2xi इजिकल टू 1, तो मतलब ये 2 केस आ रहा है टोटल ये। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा यहाँ से, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर आएगा ना यहाँ से, इस वाले से। Yes, sir. Yes, sir. एक्स बराबर प्लस माइनस वाई होगा, क्योंकि आपको बताया था ना एक्स स्क्वायर 4 होता है तो प्लस माइनस 2 होता है। एग्री? Yes, sir. यहीं पे बहुत बच्चा गलती कर देगा। यहीं पे क्या गलती करेगा, एक्स को वाई लिख देगा बस। दिस इज रॉन्ग। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स प्लस माइनस 2 होता है, तो एक्स को दोनों लेना है आपको। तो नाउ द 2 केसेज अराइज। अब 2 केस क्या होगा एक आपका, एक बार एक्स को प्लस ले लो बाकी ये तो सेम है, निकालो फिर 2xi इजिकल टू 1, सॉल्व कर लो, एक्स को वाई रख दो इसी में, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, तो 2x स्क्वायर 1, एक्स का वैल्यू आपका प्लस माइनस 1/√2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगा। तो x का वैल्यू आप प्लस में ले लोगे एक बार तो y भी प्लस आएगा, x माइनस लोगे तो y भी माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि x y के बराबर है ना, तो या तो प्लस लोगे तो प्लस आएगा, माइनस लोगे तो माइनस आएगा। देखो कितना सारा आंसर इसका आ रहा है। अभी x का 2 वैल्यू तो यहीं आ गया और x का 2 वैल्यू यहाँ, मतलब x का 2 वैल्यू इससे आया, y का भी 2 वैल्यू आया। अभी और भी केस है, x को माइनस वाई रखेंगे तो यहाँ पे अगर करेंगे सॉल्व तो माइनस 2x स्क्वायर 1 आएगा, x आपका। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका आएगा माइनस 1/2, एक्स आएगा रूट अंडर माइनस 1/2, तो ये आपका क्या आएगा, प्लस माइनस i/√2। क्यों? क्योंकि रूट अंडर माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, आई। और बाकी √2। और प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि आपको कितना बार बताऊं कि जब भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर करके होगा तो प्लस माइनस आएगा ही, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस i/√2। अब एक बार प्लस i/√2 ले लो तो y इसका उल्टा आएगा क्योंकि x माइनस वाई है, और एक बार माइनस ले लो Minus तो I/√2. Yes, sir. तो माइनस तो प्लस आएगा। तो ये देखो, अब पता नहीं एनडीए वाले क्वेश्चन में क्या है, रुक जा। एनडीए वाले क्वेश्चन में देखो, एनडीए वाले क्वेश्चन में लिमिट कर दिया तुमको, आसान कर दिया। आरडी शर्मा वाला टफ है देखो, इसलिए बोलता हूँ एंड नोट इन योर कॉपी, क्वेश्चन का हर लेटर इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन का हर लेटर इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ रीड केयरफुली। यहाँ पे कुछ भी फालतू में नहीं लिखा है, कुछ भी फालतू में नहीं लिखा है, सबका कुछ ना कुछ यूज है। देखो, MNNR पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन आरडी शर्मा इज इट ट्रेनिंग यू फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। ठीक, अगर वो ये ना लिख के आता, लेकिन यहाँ पे देखो आरडी शर्मा में जो है एक्स और वाई है, एक्स और वाई, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स और वाई पे। एक्स एंड वाई कैन बी रियल ऑल्सो, बट इन एनडीए दे हैव सिंपैथी फॉर यू, दे नो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है विद इन लिमिटेड टाइम। तो इतना केस किसको याद आएगा उस समय, क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए, बहुत बड़ा बात है, इसलिए आपके लिए इतना आसानी किया है। MNRR पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो जब पॉजिटिव रियल नंबर्स है, वो भी पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है मतलब और आसान कर दिया आपके लिए, और आसान कर दिया मतलब यहाँ पे आपको प्लस माइनस वाई भी मत नहीं लेना है, सिर्फ एक्स इजिकल टू वाई लेना है। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कर लेना सॉल्व। और इसमें आपको किसका वैल्यू निकालना है, फिर आपको देखो व्हाट इज m + n इक्वल टू, धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करके तुम एनडीए एग्जामिनर का दिमाग समझ सकते हो वो क्या कर रहा है। बेसिकली एनडीए एग्जामिनर का दिमाग क्या है, यही है कि कोई भी क्वेश्चन जो आरडी शर्मा में है उसको उठाओ,
उसके फॉर्म में हल्का सा मैनिपुलेशन करो और उसके बाद पूछो। आर डी शर्मा से क्वेश्चन उठाओ, उसके बाद फॉर्म मैनिपुलेट करो, उसके बाद कुछ और पूछो, आस्क समथिंग एल्स। और आपका डीप थिंकिंग चेक करेगा, पेशेंस, यही सब। देखो अब इसने एम और एन का वैल्यू भी तो पूछ सकता था, लेकिन क्या पूछा, व्हाट इज एम प्लस एन इक्वल टू। ओके, तो इसमें क्या होगा ना, कभी कभी क्या होगा कि एम का वैल्यू शायद जीरो आ जाए। मान लो एम का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। तो जिस बंदे का स्ट्रेस हैंडलिंग कम होगा वो क्या करेगा, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो We can स्ट्रेस, easily solve this. हाँ, तो वहाँ आपके सामने रहेगा, वहाँ आपके सामने आंसर रहेगा। एम भी आप खुद निकालोगे, एन भी आप खुद निकालोगे, फिर भी आप आंसर जीरो मार्क कर दोगे, है ना, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे पूरे क्वेश्चन पे। क्योंकि वो बच्चा पूरा पढ़ ही नहीं रहा, वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट है डायरेक्ट। वो जैसे ही देखा जल्दी से एम निकाल लेते हैं, है ना, आगे पता नहीं क्या पूछा होगा, एंड ही इज़ मार्किंग जीरो। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू टू डू दैट। होप यू गेट माई पॉइंट, लिविंग इट टू यू। सो आई होप इतना काफ़ी है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। इसी तरह से मैं अब अपलोड कर दूंगा आपको। आई थिंक आई हैव प्रूव्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक फॉर यू, एंड नाउ इवन इफ आई डू नॉट टेल यू, दोज हु आर सिंसियर विल ऑलवेज सॉल्व दिस। नाउ shall I मूव? ओके, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब आपका आगे है डिटर्मिनेंट। तो उसके बाद मेरे को वो डिस्कस करना है ना, क्या था, रॉ एक्लन फॉर्म थोड़ा देख लेते हैं, आज होता है तो कल भी कर सकते हैं। तो देखो थोड़ा डिटर्मिनेंट का दिखा देता हूँ। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टफ वाला ही लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इजी वाला लेंगे। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो लॉग का देखो, लॉग का वेरिएशन यहाँ पर है, एपी का वेरिएशन है, फिर इसी में जीपी का वेरिएशन, तो यही सब है, वही सब पूछेगा और क्या। कहाँ गया, और है इसमें कॉम्बिनेशन है। चलो देखो इसको करते हैं सॉल्व एक बार। देखो m is a positive integer and determinant is this, prove that summation of the determinant is equal to 0। समेशन लगाना है तो समेशन लगाओ। तो समेशन आपको पता है किस पे लगता है, समेशन उसी पे लगता है जिसमें r वाला टर्म हो। जो समेशन का ये नीचे देखो, समेशन के नीचे में क्या लिखा होता है, r, तो जिसमें r वाला टर्म होगा उसी पे समेशन लगेगा। तो r वाला टर्म जहाँ जहाँ है वहाँ लगा दो, लगा दो। देखो इस पे लगाओ, फिर इस पे लगाओ, इस पे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस पे भी लग रहा है लेकिन, और फिर ये सब तो ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2r माइनस 1 जो है आपका, r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, तो 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, बोलो 0 पुट करेंगे इसमें तो कितना आएगा, -1। ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे पुट करो 1, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 सर। हाँ, फिर 3, फिर 5, और 1, sir. हाँ फिर m पुट करेंगे तो यहाँ तक आएगा ना, ठीक है ये। यस सर। और ये जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये ऑड नंबर का सम नहीं लग रहा है तुमको, ऑड नंबर का। यस Yes, सर। और फॉर्मूला किसी को पता है ऑड नेचुरल नंबर्स का सम का, n तक, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, n स्क्वायर होता है, करके वेरीफाई देख लो। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, 4। 4, sir. जो कि 2 का क्या है, 2 square 4.
1 और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9. जो कि 3 का क्या है? 3 square. तो यू गेट द ट्रिक। कितना नंबर आप ले रहे हो? 2 नंबर ले रहे हो तो 2 का स्क्वायर, 3 नंबर तो 3 का स्क्वायर, m नंबर तो m का स्क्वायर। यहाँ m नंबर ले रहे हैं क्योंकि m तक जा रहे हैं तो m नंबर ले रहे हैं, है ना। ये Yes, sir. 2m-1 से ये मत समझ लेना कि 2m-1 नंबर ले रहे हैं, वो फॉर्म है, नंबर m ले रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, m नंबर ले रहे हैं। एक्चुअली देखो, जीरो से अगर m तक जाएंगे ना तो m+1 नंबर होगा। जीरो से m तक जाएंगे तो कितना नंबर होगा? M+1. लेकिन जीरो को तो हटा दिया है ना हमने, जीरो पे एंट्री क्या आया था? -1, वो तो हटा दिया है। तो अगर आपसे पूछेंगे 1 से 5 तक कितना नंबर है, तो 1 से 5 तक कितना नंबर है? 5 नंबर है। तो बस 1 से m तक कितना नंबर होगा? 1 से m तक m नंबर होगा। तो ये m नंबर ही है। तो ये समझ में आ गया आपके बात? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब -1 और देखो इस पूरे की जगह m स्क्वायर लिख दिया और सॉल्व करके m² -1। क्लियर? अब आगे, Yes, sir. अब ये वाला निकालो। तो r के जगह 0, MC0, MC1, MCM। आई कैन नॉट हेल्प यू बट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट इसका फॉर्मूला होता है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। अब जब आपको वो आ जाएगा ना कॉम्बिनेशन, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये सब क्यों होता है। अब डिस्कस कर लेंगे तब, अभी तो याद करो बस। कॉम्बिनेशन में एक फार्मूला होता है, 10 बार लिखो, 12 बार लिखो, याद हो जाएगा। MC0 MC1 लेके MCM तक 2 पावर m होता है, 2 पावर m होता है। ओके, जैसे MC0 तो क्या आएगा? वन 1 आएगा क्या? नहीं, MC1। यस 1 ही आएगा। और MC1 क्या आएगा? m आएगा, m। ठीक है, अरे MC1 n होता है, ठीक है, MC1 m आएगा। ऐसे सॉल्व करके देखो, हो जाएगा। सॉल्व करो, m फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू m-1। तो m को अगर खोलेंगे तो m इंटू m-1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो m ही तो आएगा। MC1 m होता है। तो 1 + m आ रहा है ना, दो को जोड़ के देखो एक बार, एग्जाम्पल से चेक करने का ट्राई कर रहे हैं। 1 प्लस कितना m, तो लेकिन 2 पावर m आ रहा है। टू पावर m डजंट मेक सेंस। चलो हटा इसका, अभी याद कर लो फॉर्मूला। आगे 2 पावर m हो गया। अगला देखते हैं, इसमें इस पे क्यों लगाया है, 1 मिनट। अच्छा, मतलब जिस रो में अप्लाई हो रहा है उसमें पूरा अप्लाई होगा ना। अगर किसी एक रो में ये वेरिएशन करके है, ये आपका जो समेशन है ये सब पे अप्लाई होगा। इसमें भी था, इसमें भी था, इस दोनों पे हुआ तो इस पे भी होगा ही होगा। इसलिए मतलब अगर किसी एक रो में भी अगर कोई भी एक एंट्री डिपेंड करे आर पे, तो पूरे पे अप्लाई होगा, राइट? ऐसा ही है। जैसे इसमें देखे, इसमें ये डिपेंड कर रहा था आर पे, ये कर रहा था आर पे, ये कर रहा था आर पे, तो इस सब पे अप्लाई हुआ ना, बाकी सब पे तो नहीं हुआ। और कोई क्वेश्चन है? इसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक ही रो में आ रहा है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक ही रो में आर वाला टर्म आ रहा है। आई एम सेइंग कि एक ही रो में आर वाला टर्म आ रहा है, एक ही रो या एक ही कॉलम में, सॉरी, उस कॉलम में ही अप्लाई हो रहा है। तो जब भी होगा तो उस पूरे कॉलम में अप्लाई होगा। ओके, तो इससे ज़्यादा हार्ड आपके पास आएगा नहीं, है ना। और जो फॉर्मूला सीट था उसमें भी समेशन का था फॉर्मूला, कहाँ था, यहाँ था ना, ये तो इसी में हो रहा था। और इस दोनों में तो मतलब टाइप ही ऐसा है पूरा फिक्स, कि जब भी आ रहा है तो एक ही में आ रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डिस्कसिंग। आगे इसमें तो मैं इसका डिस्कस कर रहा था कि 1 पे क्यों अप्लाई किया। 1 पे, ये 1 में तो आर वाला टर्म नहीं था,
फिर भी 1 पे क्यों अप्लाई किया? ये जो 1 था, तो उसका जवाब ये है कि अगर समेशन अप्लाई होगा तो पूरे रो में होता है, किसी को छोड़ के नहीं होता है। 1 पे अप्लाई होगा, तो 1 पे अप्लाई होगा तो क्या बचेगा? देखो 1 पे कितना बार आप अप्लाई करेंगे? m बार। लेकिन 1 के साथ तो कोई r वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या आएगा आंसर? कुछ समझ में आ रहा है? बताओ। किसी को ये समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था, सॉरी। कहाँ गया? Since I turned off the recording, I am showing you again so that it comes in the recording. तो यहाँ पे जो भी हमारा डिस्कशन हुआ था लास्ट का यही था कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे m+m टर्म होता है। बाकी तो यार आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। चलो, सब तो आसान आसान क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट निकालो। ये रिमार्क्स लिखना, ठीक है, जब अपलोड करूँगा तो। ये ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट, द मैट्रिसेस व्हिच आर नॉट डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी एक्सपेंडेड इफ रो और कॉलम में डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल 0 देन द वैल्यू डिटरमिनेंट 0। सैरस डायग्राम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वीडियो जाके देख लेना। फोर्थ ऑर्डर का कैसे निकालते हैं ये नहीं पढ़ा है। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 और मोर, ये आपका फोर्थ ऑर्डर का है। और इसको निकालने के लिए वही तरीका होगा जैसे उसका होता है, और साइन के लिए फिर वही है। साइन डिसाइड करने के लिए -1 का पावर i+j। यहाँ से स्टार्ट करो 1, तो 1 से शुरू होने वाले रो को, कॉलम को हाइड कर लो, तो क्या बचेगा? ये पूरा डिटरमिनेंट बचेगा, ठीक है ना? सही है। उसके बाद अगला एंट्री है 2, तो 2 के लिए क्या होगा? ये एंट्री है 12, तो मतलब ऑड ऑड है तो माइनस साइन आएगा। माइनस आ भी रहा है यहाँ पे माइनस, और इससे शुरू होने वाले रो को और कॉलम को हाइड कर लो। रो को हाइड कर लो, रो को हाइड कर लो, कॉलम को हाइड कर लो। सही है। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया। फिर जैसे जो आपका 3x3 ऑर्डर पे जैसे सिखाया है वही यहाँ पे लगेगा। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो बना लेना। फिफ्थ ऑर्डर का भी ऐसे ही बनेगा। बताओ। जैसे थर्ड ऑर्डर का बना वैसे फोर्थ, वैसे फिफ्थ का बनेगा ना? हाँ, यस सर, यस सर। यस सर। ओके, फिफ्थ ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। सर वहाँ पे लिखा है ऑफ ऑर्डर 4 और मोर। हाँ, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है फिफ्थ ऑर्डर का, 1 2 3 4 5। अरे स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितना रो हो उतना कॉलम हो। रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स तो पता ही है। अब हमारे पास जो है 25 मिनट्स के आसपास है। मैं इसी बुक में अभी रहता हूँ, ये डिटर्मिनेंट वाले। मैं आपको एक टॉपिक दिखा देता हूँ, जो है आपका ये, आप नोट कर लो। इस पे थोड़ा आप पढ़ के रिसर्च करके मेरे को बताना कल टेस्ट के बाद या बाद में। नोट कर लो, ये है आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड। लिखो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ये आपका जेई मेंस का अलग से टॉपिक है। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लिख लिया? गॉसियन एलिमिनेशन डन। यस सर। उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 2, एकलन फॉर्म। एकलन फॉर्म
डन। यस सर। फिर तीसरा लिखो रो एक्लन फॉर्म। यस सर। अगला लिखो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। यस सर। डन। उसके बाद लिखो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। सर। उसके बाद लिखो गॉस जॉर्डन मेथड। कितना पॉइंट हुआ? सर 6 चलो लास्ट पॉइंट लिखो ट्रेस ऑफ अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कॉमा कॉमा देके लिखो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कॉमा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कॉमा नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स कॉमा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। हो गया? आइगन वैल्यूज ई आई जी एन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। डन। यस सर। हाँ तो ये जो लिखा है ना टॉपिक, इस पे आप रिसर्च करना जितना भी छोटा मोटा टाइम मिले। बाद में इस पर कभी अलग से सेशन रखेंगे, कभी किसी संडे को, ठीक है? और रिसर्च करके फिर बताना मेरे को। अभी अभी के लिए मैं इसको रख, ये जो टॉपिक आपको बताया ना, ये आपका जेई मेंस का जेई एडवांस का टॉपिक है। ये लास्ट का जो बताया वो जेई एडवांस का आइगन वेक्टर वाला, और बाकी जो ऊपर है वो जेई मेंस का है। रैंक शायद पूछ भी सकता है, तो वो देखना एक बार। लेकिन अभी आई विल यूज़ दिस टाइम, नॉट वेस्ट दिस टाइम ऑन गोइंग what is not directly given in NDA syllabus. Okay, so let us continue for more 40 minutes on the same line. किसी को कुछ बोलना है? No, sir. ये आपका एक क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स सिंगुलर। बहुत आसान है आपके लिए। सर ट्रेस पता चल गया सर। डायगोनल वाले को जोड़ देते हैं बस, यही ना? हाँ हर्षदीप, यस सर। डायगोनल वाले को जोड़ देते हैं ना, ट्रेस वही होता है ना? यस सर वही होता है। ट्रेस बहुत आसान चीज़ है। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ललित्या, आप बोल रहे थे कि आपको गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन का थोड़ा पता था, आपने पढ़ा था क्या? No, sir, I didn't, but I know the name. That's it. Okay, you know the name. From where you know the name? JE, sir. Okay, G. Okay, no problem. So what value of x, ठीक है, तो इसका सिंगुलर दिया है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, देन यू कैन सॉल्व। फिर अगेन ये भी डिटरमाइन द वैल्यूज। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। यहाँ पे लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू इट इज़, मतलब एक एक्स का एक ही वैल्यू निकलेगा जो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, वैल्यूज़, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू निकलेगा। सो फाइंड देम एक्स। देखो यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक तो आ जाओगे तुम, ये समझ में आता है। इसको फिर कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ए इंटू बी जीरो हो तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। Zero. एक्स को भी जीरो रखो, उसके बाद इस पूरे को जीरो रखो, और इस पूरे को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, माइनस को फैक्टर तो पढ़ ही लिया है ऑलरेडी। आपको क्या पढ़ाया था?
माइनस माइनस में ही साइन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, कोफैक्टर। ओके, तो जिनके लिए नया है डोंट वरी, वॉच द वीडियो, यू विल गेट 100% क्लैरिटी, इनफैक्ट क्रिस्टल क्लैरिटी। इतना बेसिक से पढ़ाया है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर तो है ही है, देखो ये सब कोफैक्टर क्या है, एम आई जे इफ आई प्लस जे इज इवन, वो तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, आई प्लस जे इवन है तो माइनर ही हो जाएगा कोफैक्टर, और आई प्लस जे ऑड है तो माइनस साइन लग जाएगा। Some author define the minors and cofactors for the elements of a determinant, which is not correct. In fact, minors and cofactors are different for the elements of a square matrix. Okay. अच्छा, मतलब कुछ ऑथर जो है क्या करते हैं, माइनर कोफैक्टर को डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए, विच इज रॉन्ग। माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स का निकलता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये याद रखना। माइनर और कोफैक्टर किसका निकलता है, मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दिस इज द रिमार्क्स, इस सब पे नोट करना है, ये सब आसान है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है कि ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर 2 4, खत्म। इसको सॉल्व कर लेना, इधर क्रॉस। साइन का ध्यान रखना प्लीज़ सर एंड मैम, कि यहाँ पे एक माइनस साइन और देंगे, 3x इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये माइनस साइन अलग से देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व अकॉर्डिंगली। I hope you know how to do middle term split up, factorization and all. If you do not know all of that, go and do a simple Google search and type on YouTube actually how to do middle term split up, and you will learn that. Leave no stone unturned. Okay. Those who are preparing for CAT, they are way elder than you in your terms of age, but still they are doing simple quant calculation because they know they will be going IIM after that. So do whatever it takes. 3 minus xy, 3 minus 8, तो सॉल्व कर लो। लॉग का पता है ना आपको, थोड़ा लॉग का बता देता हूँ। देखो लॉग क्या होता है, इसको हम बोलते हैं log 10 बेस 10। लॉग का मतलब होता है कि बेस को कितना पावर पे राइज करेंगे ताकि वैल्यू आ जाए, यही मतलब होता है लॉग का। अब तुम बताओ मेरे को सोच के कि 10 को कितना पावर देंगे तो 1 आएगा, नहीं सॉरी उल्टा ही बोल, 10 को कितना पावर देंगे तो 10 आएगा, ये वैल्यू है। हाँ बोलो, 10 को कितना पावर देंगे, 1 देंगे ना। हाँ, तो यही पावर को लॉग बोलते हैं, पावर ही लॉग होता है, ठीक है। जो पावर पे रेज करोगे ना बेस को, बेस रेज टू व्हाट पावर इज कॉल्ड लॉग, बेस का पावर लॉग होता है, बेस का पावर लॉग होता है। तो 10 का कितना पावर देंगे तो 10 आएगा, बताओ 10 का कितना पावर देंगे 1, तो 1 ही इसका वैल्यू होगा। इसके अलावा लॉग 100 का वैल्यू कितना होता है, सर अगर बेस 10 है तो 2 आ जाएगा। हाँ अभी बेस 10 ही है सब में, तो 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 10 का कितना पावर देंगे तो 100 आएगा, बताओ। सर 2। 10 square 100. हाँ 10 का 2 है ना, तो इसी से ऐसे प्रूव भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि लॉग 100 को कैसे लिखेंगे, लॉग 10 का स्क्वायर लिखेंगे, और ये 2 आगे आएगा, 2 log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से आंसर 2 आएगा। क्यों, ये फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ मैं, log m, देखो log का कुछ फॉर्मूला होता है, log m पावर n क्या होता है, n log m,
log m का पावर n होता है n log m, मतलब पावर आगे उतर जाता है। तो 100 को 10 का स्क्वायर, तो पावर आगे आएगा, तो 2 आगे आएगा, और log 10 इससे मैच करो, समझ में आ जाएगा। और log 10 तो 1 होता है, तो 2। तो मैंने फार्मूला से भी तुमको बता दिया और इससे भी हमने डिस्कस कर लिया। ये मल्टीप्लिकेशन, ये आपका डिवीजन, उसके बाद वही बाई भी हो गया ना। और क्या होता है, और होता है log e का वैल्यू 1 होता है अगर बेस e हो। एक आपका होता है बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला ये होता है अगर आपका log बेस p है और यहाँ a है, इसको बेस चेंज करने के लिए log p बाय log a लिख सकते हैं ऐसे। मतलब सिंपल सा ट्रिक है, पहले इसका log ले लो p का, फिर बेस का log ले लो, अब बेस चेंज हो जाएगा, कुछ भी बदल जाएगा, b हो जाएगा। आई रिपीट दिस, log पहले इसका ले लो p का, फिर नीचे जो बेस है उसका ले लो, डिवाइड कर दो और बेस चेंज हो जाएगा। इसको बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर को e का पावर उसी का log लिख सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी नंबर को e का एक मिनट, e का पावर log ऑफ दैट नंबर लिख सकते हैं, log ऑफ दैट नंबर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखो एक्स क्यूब को अगर आप ऐसे लिखेंगे e पावर log एक्स क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, यहाँ e और यहाँ भी बेस e, ये सब कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक्स क्यूब बाहर आता है, ये सब कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर को ही ले, मतलब x4 को क्या लिखेंगे, ई लॉग है e log एक्स की पावर 4। x की पावर 4। बाकी ये क्या फॉर्मूला है, log b सर अगर हाँ बोलो। कोई अगर ई की पावर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सर तब ऐसे साइन एक्स को भी लिख सकते हैं, ऐसे साइन एक्स को लिख सकते हैं e पावर log साइन एक्स, ऐसे, ठीक है। एनी नंबर, अंडरस्टूड, यस सर। ओके। और ये क्या फॉर्मूला है, एक साइड में दिया हुआ है यहाँ, log b a log a b। ओके, इस पे बेस चेंज फार्मूला लगा दो, बन जाएगा। तो ये क्या होगा, log a बाय log b, इसको बोलो क्या लिखेंगे, लॉग बी बाय लॉग ए। log b बाय log a, कैंसिल कर दो, 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन, यस सर। लालित्या, Yes, sir. ओके अंडरस्टूड ना, Yes, sir. Understood. ओके ओके। चलो चलो, तो फिर अब देखना यार लॉग का, ये देखो फार्मूला वगैरह है यार, सोचना लगाना कैसे लगता है, 2 का पावर 9 यही सब पे, माइनर को फैक्टर हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट लेट मी क्विकली स्क्रॉल एंड सी इफ देयर इज एनी रिमार्क्स, ओनली बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रॉपर्टी। Remarks, it follows from the above, but you can take any common factor, you can take out any common factor, वो तो पता ही है हमको। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट ऑफ ए रो इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2, तो ये भी पता है। ये क्या है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी बी मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय एडिंग टू अ रो ऑफ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर रो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रॉपर्टी 8, और इसमें प्रॉपर्टी ये वाला लगा सकते हैं, मतलब ये सब अलाउड है डिटर्मिनेंट में, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन का बात कर रहा है।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है ना, 3 हथियार आपके पास है। एक तो ये वाला है, एक है आप 2 रो को इंटरचेंज कर लो, और एक है आपको k से मल्टीप्लाई कर लो। ये भी कर सकते हो आप। 3 को भी जोड़ सकते हो, बस इसमें कुछ मल्टीप्लाई मत करना, इस दोनों में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, a से b से। ये क्या है? लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 so that element in a row is element in a row or column of a is 0, then determinant of a is equal to 0। सब जीरो का तो जीरो होगा ही। डिटर्मिनेंट वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोफैक्टर वाला फॉर्मूला यहाँ भी दिया हुआ है, ये फॉर्मूला तो है ही। इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए टूल सब यहाँ दिया हुआ है। अब बताओ इस पे कैसे सोचेंगे, ये बताओ। प्रोपोर्शनैलिटी से। क्या प्रोपोर्शनल है? कहाँ कुछ प्रोपोर्शनल है? कुछ भी प्रोपोर्शनल नहीं है यार। सॉरी सर। रैंडम मत बोलो, पहले सोचो। प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी वाला देखो। मैं तो जो वीडियो नहीं देख के आया उनके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आई विल नॉट रिपीट फॉर यू। अब देखो फिर समझ में आएगा, है ना। अब बाकी जिन्होंने देखा है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर जिन्होंने नहीं देखा उनको मेरी बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड। प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी था, और प्रॉपर्टी सबसे बड़े प्रॉपर्टी के लिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है मैक्सिमम जीरो लाओ। जब सब प्रॉपर्टी फेल हो जाता है तो मैक्सिमम जीरो लाने का ट्राई करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि अगर 2 रो आइडेंटिकल हो जाता है ना, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो जीरो होता है आंसर। तो इसमें देखो कोई 2 रो आइडेंटिकल कर सकते हैं, तो यहाँ देखो 175 है, और यहाँ 41 है, और यहाँ 5 है। तो थोड़ा सोचो, दिमाग लगाना पड़ेगा। 41 और यहाँ 5, तो 41 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सोचो। 41 को 1 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? 40 और 40 फ्री में तो आएगा नहीं। 40 बनाने के लिए इस A5 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 कुछ समझ में आ रहा है? और देखो ये सिर्फ थॉट प्रोसेस था। अब ये चेक करो कि और लोगों पे ये वैलिड है। एक बार चेक करो। 79 इसको 8 से गुना करो तो 72, तो 79 माइनस 72 कितना आया? 7। तो और लोगों पे भी वैलिड है, यानी कि ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, है ना। दिस इज नॉर्मल रीजनिंग स्किल्स, ठीक है। तो ये अप्लाई करना है, तो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी C1 माइनस 8C3। और ये आसानी से आएगा नहीं। दिस कम्स विथ प्रैक्टिस एंड थिंकिंग। क्या हो सकता है? दिस कम्स विथ थिंकिंग रो आइडेंटिकल कैसे हो सकता है, या फिर और क्या प्रॉपर्टी। अगर ये भी फेल हो जाता तो आई विल थिंक अबाउट मैक्सिमम जीरो लाना है, या फिर मैं उसके अराउंड कुछ सोचता। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है ना। 1 ज़्यादा आसान है आने का, तो या तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर जीरो होता है, इसलिए सोचना कर ले। अंडरस्टूड? yes sir Yes, sir, understood. Okay, now let us discuss. ये क्या हो गया इसको? Now let us discuss one question which is very good, which is about cube root of unity. तो ये आता है आपका cube root of unity. So omega is a complex cube root of unity so that the determinant is 0. ये एक लाइन का क्वेश्चन है, बताओ कैसे होगा? सर सभी को ऐड कर देंगे सर। हाँ, सभी को ऐड कर दो। आपको पता है ना, देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है सर। 0 होता है। और ओमेगा मिसबिहेव कर रहा है, रुक जाओ। एक मिनट। ओमेगा को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसका मन नहीं लिखवाने का, मुझे लगता है ज़्यादा ही लिख दिया। तो इस दोनों को ऐड कर देना। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और उसका वैल्यू मतलब या तो कॉमन भी ले सकते हैं वहाँ से, तो फिर तो
और उसके बाद ऐसे भी जीरो आ जाएगा। जीरो नहीं भी आता तो कॉमन भी तो ले लेते हैं। सही है, चलो जीरो आ जाएगा। बाकी सोचना है इसी पे, प्रॉपर्टी में ऐसे ही सोचते हैं, जो छो प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले सोचते हैं कि जीरो ला सकते हैं क्या, ऐसे सबसे पहले सोचते हैं कि जीरो आ रहा है ना, तो उसके लिए रो और या कॉलम को जीरो वाला बहुत आता है क्वेश्चन आपका। कल भी एनडीए का पीवाईक्यू कर रहे थे, उसमें जीरो ही वाला आया था, देखो जब ये कर रहे थे पीवाईक्यू। कहाँ गया, देखो जीरो वाला तो मतलब भरा पड़ा रहता है। देखो ये भी जीरो वाला है, एपी वाला ये जो क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत आया था क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है, उस साल ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, लेकिन एपी का ये फिर भी जीरो के कॉन्सेप्ट पे ही है। और एक क्वेश्चन था आपका जो इस बार आया था आपका 2024 में, ये वाला कॉम्बिनेशन से मिक्स्ड है, कल इसको सॉल्व किया था। तो ये भी 2 रो आइडेंटिकल करके जीरो के कॉन्सेप्ट पे, जीरो के कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल आएगा, तो याद रखना जीरो के कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करना। तो जीरो तो रो आइडेंटिकल करने वाला होता है। तो यहाँ पे रो आइडेंटिकल कैसे करेंगे बताओ इस क्वेश्चन में? सर C3 में हाँ सर C2 ऐड कर देंगे सर। हाँ, तो ऐड कर देंगे तो बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, यहाँ भी वो हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, फिर कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो C3 में Yes. करो चाहे C2 में करो, सब सेम बात है, जीरो आ जाएगा। तो बस इस पे सोचना कैसे जीरो कर सकते हैं, बस यही है। बाकी तो इस क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, इसमें माइनर को फैक्टर है ना, डिटर्मिनेंट वगैरह वही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का DAQ भेज दिया था, आपने बनाया नहीं होगा तो सबमिट कर लेना, बना लेना जब टाइम मिले। सोमपुर ये देखो, अब बताओ फिर आप कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन का। सो ही इज़ गिविंग यू अ हिंट कि यहीं से क्वेश्चन फिर आ रहा है। तो अब बताओ कल जो क्वेश्चन बनाया था वो किस फॉर्मूला पे बनाया था, याद है? इसी पे बनाया था ना, यस सर। वो इसमें भी लग रहा है। सोचना, यानी कि आपको बुक जो फॉलो करना है प्रैक्टिस के लिए वो है ये, प्रैक्टिस के लिए। मेरा काम था सिखाना, सिखा दिया आपको, है ना। ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मैं आपको आपके साथ बैठ के अगर मैं आपको प्रैक्टिस करने लगूँ तो फिर मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा, राइट? होप यू विल अंडरस्टैंड। इसीलिए अपना काम है, मेरा काम है आगे जाना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। आपके पास जितना टाइम बच रहा है स्पेयर उसमें प्रैक्टिस करो। बुक बता दिया आपको, NCERT एग्जाम्पलर दोनों से। और कोई दिक्कत आए तो आपका ध्रुव का करके डिस्कशन ग्रुप है ही, या मेरा नंबर है आपके पास, या तो डिस्कशन सबसे अच्छा होगा, आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, सब लोग डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें भेज दो, आपको कोई ना कोई बता देगा या फिर मैं बता दूंगा। PDF बना लूँगा आपके डाउट्स का, एक ही साथ ले लूँगा। ये है आपका ध्रुव डिस्कशन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बैच वाले लोग हैं, जो बैच मैंने उनको मैं हटा दूंगा, तो आप आ जाना इसमें। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, अभी दे देता हूँ, रुक जा। कॉपी कैसे होता है, कॉपी, तो उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भेज देना। फैक्टोरियल वाला भी है। ओके, तो मैं एक मिनट में अपना काम पहले लिख लेता हूँ, आज मेरे को क्या क्या अपलोड करना है ना, मैं बार बार भूल जाता हूँ। आई विल अपलोड, ये आपका एक मैट्रिक्स, ये RD शर्मा वाला अपलोड कर देता हूँ, RD शर्मा। फिर मैट्रिक्स अपलोड कर देता हूँ RD शर्मा से, और RD शर्मा से डिटर्मिनेंट अपलोड कर देता हूँ। फिर आपका NCERT एग्जाम्पलर दोनों अपलोड कर रहा हूँ, मैट्रिक्स वाला भी और डिटर्मिनेंट वाला भी। बाकी PYQ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, वही है। बाकी उस क्वेश्चन वगैरह देख लेना, ठीक है। फॉर्मूला सीट अपलोड हो गया है, अरे बताओ फॉर्मूला सीट अपलोड हो गया ना? यस सर। हाँ, तो बस ख़त्म, अब तो कुछ बचता नहीं फिर, और डिस्कशन ग्रुप दे ही दिया आपको। दिस वाज इट, दिस इज़ द लास्ट क्लास फॉर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आपको कुछ पूछना है तो बताओ, वांट टू आस्क समथिंग? सॉरी, आज आप कुछ बोल नहीं रहे हो, समझ में आया सब? सॉरी।
यस भैया आ गया। समझ आ गया ना, चलो ठीक है, चलो ठीक है। संजना आपके समझ में आ गया? Yes, sir. सर्कल टेस्ट की टाइमिंग 8 से 10 ही रहेगी क्या? 8 से 10:30। यस सर। सर कितने क्वेश्चंस होते हैं मॉक टेस्ट में? 120, 120, सेम एनडीए एग्जाम पैटर्न। क्या कोई दिक्कत है और घटा दूं क्या? No, sir, not like that. ओके, keep OMR sheet. I will send you OMR sheet. Download it in the morning, okay? And then keep it with you. Okay, sir. And keep some rough sheet, water bottle, and same माहौल जैसा एग्जाम में होता है, okay? Be very honest and just do whatever, just use your mind, okay? And believe me, if you use your mind and if you have done some hard work, you'll be able to do it, है ना? कल का दिन है आपके पास, दिन में आप प्रिपेयर करो। मेरे को 5 बजे शाम तक बता देना आपको मॉक टेस्ट देना है नहीं देना है। जिसको दे, जो इसका प्रिपेयर हो जाए वही देना, जिसका प्रिपेयर नहीं हो जाए वो छोड़ देना, फिर बाद में देना, नो प्रॉब्लम, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए, ठीक है? लेकिन डोंट गिव अनप्रिपेयर्ड, ओके? अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, सो रिलैक्स, नो प्रॉब्लम, है ना? अभी मेरे को जितना बताना था आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना? मैं मॉक टेस्ट में लाइव लेने का मतलब मैं सिर्फ आपका कैमरा ऑन रहेगा, राइट? आपका ऑडियो ऑन रहेगा, बस मैं आपको देखूंगा, ख़त्म, ओके? और बाकी और कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट का। अगर इफ़ यू आर ऑनेस्ट तो देन नो प्रॉब्लम, ओके? तो आप जैसा बोलो मैं वैसा कर दूंगा। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, इफ़ यू से तो फिर मेरे को छुट्टी दे दो, फिर मैं छुट्टी ले लेता हूँ, आप करो मॉक टेस्ट। बताओ क्या कहते हो, बोलो कैसे करें? Sir, your अरे तुमसे ओपिनियन ले रहा हूँ, बताओ। सर ऑनेस्ट तो है सर हम लोग। yes, sir. ठीक है, फिर मैं छुट्टी ले लेता हूँ। तो आई विल सेंड यू, जो लोग मैसेज करेंगे आई विल सेंड यू द मॉक टेस्ट शार्प एट 8 PM and the submission deadline will be 10:30. Those of you who will register, okay, just inform me at around 5 PM, okay? 5 PM or 6 PM, okay? Yes, sir. चलो फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर।